आज की वेबिनार का जो विषय है भारत में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, और इस विषय पे स्पेशली जो जुड़े हुए कानून हैं, जो योजनाएं हैं, जो उनकी स्थिति है और जो अलग-अलग एजेंसी जो काम कर रही हैं, इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं आज न्याय विभाग के डेप्यूटी सेक्रेटरी श्री आर.सी. आहूजा जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी के का एक वेलकम रिमार्क्स अपने शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। ऑनरेबल ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री नीरज कुमार ग्यागे जी, eminent speakers of today's webinar, my colleagues from DOJ, invitees, dignitaries, representative partners, agencies, VLEs, PLVs. I am honored to be part of this very important webinar. It is good to see large number of participations from our grassroots functionaries. I welcome all of you for the matter that concerns all of us. Department of Justice has formulated a pan-India scheme named Disha, launched during the period of 21 to 26. One of the key objectives of the scheme is to implement the pan-India legal literacy and legal awareness program. Aims to devise tools and methodology enabling the disadvantaged sections of society to have access to information about their legal rights. Department of Justice so far has organized 9 webinars. जैसे कि आपको हमारे आशुतोष जी ने बताया है कि 9 webinars अब तक ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। उस सीरीज में एक अभी जो हम आज करने जा रहे हैं, टुडेज वेबिनार ऑन राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स इंडिया, which aims to raise participants' awareness on issues of senior citizens in India. The population of senior citizens in India had been increasing steadily since 1961. The growth in the elderly population becomes faster, mainly due to decrease in the death rate due to improvement in the health services. Today's webinar aims to reach out the wider population through available digital platform and further strengthening capacity of frontline functionaries, as they are expected to play a crucial role at the community level. I also request representative of our partners, agencies, and panel lawyers to provide need-based monitoring support to VLEs and PLEs. So if we sincerely wish to honor today's webinar, then it becomes extremely crucial to stand united for fulfillment of rights of senior citizens in India. On behalf of Department of Justice, I again welcome all of you and look forward to your valuable contribution. Thank you so much for your kind attention. Thank you so much, sir. भारत सरकार का एक निवेदन सभी से है, जो लोग डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, प्लीज अपने स्पीकर्स ऑफ कर लें। कृपया अपने स्पीकर्स ऑफ कर लें। प्लीज टर्न ऑफ योर स्पीकर्स। भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक नीतियां एवं लाभकारी योजनाएं तैयार करता है। अगले वक्ता के रूप में मैं श्री भरतलाल मीणा जी, जो डायरेक्टर वरिष्ठ नागरिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आमंत्रित करता हूं। मीणा सर भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए कानून एवं चलाई जा रही योजनाओं के बारे में हम सबका ज्ञानवर्धन करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीणा सर से, भरतलाल मीणा सर से। मीणा सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Can we request Sarthak at the back end to please mute all the speakers except the current speaker? Is it visible and audible? Yes, sir. Okay. I think it is working fine and it is visible and audio is also okay. Let me start with. Thank you very much for calling me for this platform.
In the next 15 to 20 minutes, we shall discuss about schemes, policy, and act meant for welfare of senior citizens. We shall first schemes, then we shall discuss about act, what are the provisions in the amendment bill, and what is the status of that act. And in the last, we shall discuss about policy. Before we discuss about schemes, let us know where we stand across the country, how elderly population is increasing day by day. If you see in the graph, population is increasing almost exponentially. In the next 25 years, population of senior citizens will be doubled. In 2011, it was 103 million, and in 2036, it would be approximately 228 million. If you see the percentage wise, in 1961, 5.6% was their population of senior citizen. 2011, it was 8.6, and now in 2036, we have projected it would be around 15%. Decadal growth rate in population, if you see, population is, although it is not increasing so much, but in case of senior citizen, it is increasing like anything. In 1991 is 25.2, whereas in the 2001 to 2011 is 30.5. So what we see, that population of the senior citizen is increasing. Credit goes to good health services we are providing to them. So issue is very serious. Quantum of work is huge. We have to take care of every senior citizen, what they need in their life. This is a huge responsibility of the government. It is so very sensitive also. By observing population growth and the quantum of work, huge quantum of work we are having with us, we should have all the schemes having proper vision, and to achieve that vision, we should have proper mission also. If categorically we state what is the vision of all the schemes we are having in the Ministry of India, then it is to build a society in which senior citizens live healthy, happy, empowered, dignified, self-reliant life along with strong social and intergenerational bonding. This vision we want to achieve through our different schemes or through any policy or maybe any law also. So to provide them adequate food, water, shelter, clothing, healthcare, financial and social security, we need to have a mission in which give them access to provide facilities of such essentially the need. Further, we need to have awareness generation also about act and policy. We need to have schemes to make them aware about our policies and schemes. More important thing is that we should have a trusted information for them, a platform where they can access and see what is going on in the government, what are the policies meant for them, what should be start, what are the activities going on, whether these are useful for us or not. So these are the vision and mission which have been mentioned in the scheme guidelines. The scheme is uploaded on the portal of the ministry. It has been duly approved and it is for the public. If anybody has not gone through it, please go through it. A lot of more information is there in that. We have many number of schemes. Major schemes I will discuss here. We have revamped and renamed the scheme meant for senior citizens, Atal Vayo Abhyuday Yojana, and through this scheme we have taken different sub schemes. One of the sub scheme is integrated program for senior citizens. In the integrated program for senior citizens, we provide free of cost shelter and
their food, shelter, and clothes. We call it senior citizen homes. Target beneficiaries for senior citizen homes is indigent senior citizens. The word indigent senior has been categorically defined in MWPSC Act 2007. Indigent senior citizen means a senior citizen who is not having sufficient means of living. Means if he is not having house or otherwise is not having food, then we keep them in senior citizen homes and we provide them shelter, food, and recreational activities free of cost. This is being done through societies, NGOs, trusts, or any state local authorities. States can also open senior citizen homes. As far as central government is concerned, we provide grant in aid to NGOs, voluntary organizations. We invite applications everywhere, every year, and we select based on their qualities and performance and reputation in that area. So we select NGOs to provide senior citizen homes. Projects through integrated program for senior citizens, if we name it, we provide senior citizen home of the capacity of 25 beneficiaries, maintenance of senior citizen homes for 50 beneficiaries. Let me make it clear here, we are not providing grant for construction of senior citizen homes. We are providing grant for maintenance of senior citizen homes only. So land cost and building cost, government of India does not bear it. Third one is maintenance of senior citizen home for 50 elderly women. We understand in some of the areas because of economic crisis, women are facing problems, especially widows. So exclusively for elderly men, we provide grants for senior citizen homes, meant for exclusively for women. Maintenance for continuous care homes and homes for senior citizens afflicted with Alzheimer's and dementia. For a minimum of 20 senior citizens, we provide grants. Everywhere, I think every year we provide them grant. It is disbursed, it is given in 2 installments. One Udan portal is there. We take application. They submit their application online through Udan portal, and it is processed, and the amount is disbursed to their account directly. It is very transparent. So, and they can know what is the status of their application. Fifth one is maintenance of regional resource and training centers. The centers which are the responsibility of them is they will coordinate with local authorities, and if there is an issue, they can disseminate information to them. And in fact, they are providing training to senior citizens also, if it is required. Whoever are working in somebody does not know anything about them, they can send them to RITC and training. Maintenance of mobile medical unit, ongoing physiotherapy clinic for senior citizens. These ongoing project we are supporting, but for last financial year we are not supporting new MMUs of physiotherapy clinics. Actually, this cabinet note was approved last year, and this was the condition that only ongoing projects should be supported. No new MMU physiotherapy shall be added by this ministry. The same projects are being run by Health Department. If you see the target and what is the status as on today as far as senior citizen homes are concerned, as per section 19 of the MWPSC 2007, it has been mentioned that in every district there should be senior citizen home. Therefore, accordingly, this scheme was started. Till now, we could cover only 50% districts across the country. Our target is to cover remaining 50% districts at the earliest, at most within next 4 years we have to complete all. In fact, we have prepared EFC, and this cabinet note has been approved like that, and budget provision has been made accordingly.
Therefore, we have asked every district welfare officer to submit their information whether any senior citizen home is working there, irrespective of maintenance of any institution, any organization, society, or even private. If it is, if any private agency is there and they are maintaining their senior citizen home, then our purpose is solved. Then no senior citizen home is required in that area from our side. We are here to cover districts where no senior citizen home is there, whether it is maintained by private agency or government or NGOs. Survey reports they submit online through Madan portal. We see that such and such districts they have submitted the no senior citizen home is working there. Then accordingly we issue notification from this ministry to invite application from all eligible NGOs, societies, and trusts. And after physical verification and after knowing reputation of that organization or society, we select NGOs to provide the services. Second major initiative here, Atal Vayu-Vidya Yojana is Rashtriya Vayasri Yojana. This is the umbrella scheme under Atal Vayu-Vidya. The second scheme is Rashtriya Vayasri Yojana, which was started on 1st April 2007. Objective was to provide assisting living devices to disabled persons who is not able to listen properly or otherwise they are not able to walk properly and they are senior citizens. And if they are below poverty line and family income is not more than 15,000 per month. Such living devices and assisted living devices, physical aids, we provide them free of cost. Assisting living devices are provided free of cost through camp mode. We arrange camps in every district based on information we receive from district magistrate or member of parliament or MLAs or any other. This scheme is being implemented through LIMCO. It is a PSU under this ministry. LIMCO means Artificial Limb Manufacturing Corporation. There are many items, generic items are walking sticks, elbow crutches, walk crutches, tripod, hearing aids, artificial dentures, spectacles, special items, wheelchairs, I will not name, but so many items are there which are really required for senior citizens in old age. That is, we provide them free of cost, and it is arranged, very famous scheme it is. After assessment, we check whether which type of item is required of what size. So doctor goes there and check it and assess it. If such and such item is required, so we provide them based on medical checkup. This is the status as on today. We have not as on today. This is the status as on 10th January 2000. More number of camps have been arranged. It is around 59 in 2021-22. Total number of devices we have issued, we have given 5,72,218 till now, and value of the devices till now it is in crore, 136 crore. So it is going on. Remember, we want to cover almost all the districts in next for this also scheme has been prepared. Third initiative we have taken last year, in fact, we have taken livelihood and skilling for senior citizens. Livelihood and skilling for senior citizens. This scheme is meant for active senior citizens. Whoever are active, they can form a group, what we call it, elderly self-help group. Actual name, and we have given action group aimed at social reconstruction. Group. This aim is to let them you can sit together whole day and they can run activities. They can produce items by collecting materials from the local maid or otherwise. They can run any kitchen garden. They can run any crèche or kitchen gardening, teaching, high-tech vegetables, poultry, agora rabbitry, mushrooms, cultivations, medicinal plants. Vegetables are so many. Even village level entrepreneurship they can start through this.
So it is across the country. We have started last year, and we provide them 50,000 honorarium, 50,000 amount of 50,000 per annum. Our aim is to make them sustainable. We provide them honorarium for 5 years only, in anticipation that they will continue. If they are able to run a dairy, it will be sustainable. They can sustain without help of the government, but still lack of awareness is there. But we have started it, and it will be enlarged, and more number of groups will be formed, and the senior citizens will pass their time happily. One more in this scheme point is this the initiative, the Senior Able Citizen for Re-employment Dignity, that is Sacred Portal. This was started last year on 1st October 2021. It was inaugurated by the Vice President of India. This portal is a portal where job provider and job seeker both can enter their details. Yes, if I am a job provider, I'm a company owner, then I can fill their form and say, okay, I need an experienced senior citizen having such and such qualification or skills. And the another side, the senior citizen who is very active and has some educated maybe or having experience can fill their request. With their request on the Sacred Portal, and after matching with respect to their parameters like area of interest and language, and amount, so much of amount they need, based on that they select senior citizens. If it's matching, they can get jobs. It is a self-actualized system. We have started last year. Still, here lack of awareness is there, but more senior citizens come to know, they will use it. One more initiative we have started last year, promoting silver economy. Through this, we encourage startups to come in this field to produce items or provide services made for senior citizens. We provide fund up to 1 crore in the mode of equity share. The equity cannot be more than 49%, up to 49%. For that, one portal is there, SAFE portal. It was also inaugurated by Vice President of last year on 1st October 2021. Nowadays, last year we had invited applications and 9 startups were selected, and around 20 crore amount was released through IFCI. Although this is in the process, but we have already taken this initiative. For the current financial year, window was opened and we have received applications. This process is going on for increasing startups for the selection. We have this is also helpline we have started last year, that is 14567. This number is very simple. We can remember it. It's 4567 is a number, so it is easy to remember, and senior citizen can remember it. And this is accessible through any mobile or any landline number of any operator. If you are having Aircel or otherwise Airtel, BSNL or MTNL, Vodafone, from whichever telephone you are having or mobile you are having, you can access this number by dialing 14567. This is a toll-free service. This service is available from 8 a.m. to 8 p.m. So through this helpline, any senior citizen can submit their complaint or grievances. They can, if they are in depression, they can contact 14567. Experts are there. They can actively engage them. In fact, our operator is working out there, and they can redress their grievances through dialing this number 14567. Across the country, it is available. In some of the states, still it is not there, but more than 29 to 30 states it is active. Ground service delivery is also there. If you have a particular senior citizen facing problem to
He's facing if some emergency is there, he can dial this number and our operator will contact them, he will coordinate and some help will be provided at the door also. These are the major schemes. These were these major schemes we are running. Let us have some idea about the act. As per provision made in the Constitution, Article 41. Please, you come after that. This, as per Article 41, we have to take care of old age. We are bound to, it's a constitutional provision is there. Accordingly, in 2007, this Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 was enacted. Following are the provisions. This is the responsibility of children related to take care of parents and senior citizens. Provision of tribunal is there in the act. If they are facing some problems, they can submit their application before the tribunals. Disposal will be through trial or through reconciliation process. If something is to be done or they are reconciliation, then 10,000 per month maintenance order can be issued by the tribunal. Means children have to pay. This is the provision as of today. Maintenance office for pleading on the behalf of the senior citizen. Setting up old age home in every district, as I told you earlier, as per section 19, there is a provision. State government to provide medical support for senior citizens. We know health services are the subject matter of state, so state government has to provide medical support for senior citizens. Transfer of property to be void. Maintenance of elders. Abandoning of parents is a punishable offense with imprisonment up to 3 months or fine up to 5,000 or both. As on today, if you see the implementation status of the Act, all the states have notified the Act. Tribunals have been constituted in all the states. Number of cases filed are less. We understand I the lack of awareness there. Lack of awareness is there. It's a matter of relationship between children and parents. So it's a very sensitive issue. Some of the parents they go to court or tribunal, they say, okay, kya chalta hai, bachche ka mamla hai. They can, they have some, but still, because of lack of awareness, number of cases have been filed very less. We have received feedbacks from different stakeholders. From the High Court, Haryana, Punjab, and High Court of Madras, there were judgments. As per that judgments, and they pronounced the judgment that task of the SDM and DMs can be discharged by legally trained persons in tribunals, appeal to be admissible to children or relatives, advocate to be allowed before the tribunals. This directions we have received from Honorable High Court of Haryana and Punjab during that time. And we have received recommendations from group of secretaries, uniform adoption of the age criteria for all the benefits, rating of organization providing home care services to elderly, an increase of maintenance amount to senior citizens from 10,000 to higher amount. These recommendations we have received from group of secretaries. Public grievances, petitions received in the department regarding inclusion of daughter-in-law in the definition of children, increase the amount of maintenance allowance, and inclusion of both parents and senior citizens everywhere in the Act, strengthening Section 23 of the Act regarding transfer of property and medical support in hospital. So many other suggestions we had received. Based on these suggestions, we have introduced amendment to the MWPSC 2007. We call it MWPSC Bill 2019. It was introduced on 11 December 2019. Following the major provisions we have made, we have expanded the children definition. The definition of parents also has been expanded to include low and in-laws and grandparents. We have increased upper limit of maintenance from 10,000 to higher amount as per
the need of the parents. Provision of appeal extended to children also. Sometimes what happens is children are not satisfied or some facilities there, or they may say, okay, this judgment given by tribunal is not okay, but there is no provision at all how to go, where to go as per that. So this provision has been, now children can also go against tribunal orders. They can go to appellant authority. Appellant authority is district level, it is there. DM is the appellant authority there. So provision of appeal extended to children and relatives. Daycare facility has been made for daycare facility. Old age homes, daycare center to be registered with registering authority designed by the state government. As on today, it is not there. Some of the states it is there, but now it has been made mandatory. State government may cancel, withhold registration of institution not providing necessary amenities. This we felt that if we are not able to provide quality of services or senior citizen home is not up to the mark, then we can cancel that. And this was the minimum need, therefore we did it. A regulatory authority to be designed by the state government for the functioning of the institution. It was also felt and essentially we have introduced it. Central government to give model rules to all the state governments. That last time also this model rules were given to all the states. This time also in the amendment bill, based on the provisions made in the act, we have to make model rules and all will be circulated to state governments for further implementation. They can modify it based on model rules at the level of state also. Home care services for senior citizens, registration of such institutions, and accreditation of quality of services. This provision has been made. Nodal officer for senior citizen in every police station would be required. Revocation of to parents as well. Punishment for abuse of senior citizens, parents introduced. Maintenance officer to represent parent application tribunal and act as a single point of contact. So this we have made a special provision of parents will not require to hire any special man or otherwise lawyer or otherwise. No need to take any suggestions. One maintenance officer would be there. He will take care of that. Designation of the registration regulatory authority to be provided within 6 months. 6 months. This is a time we have given mandatorily that it has to be designated within 6 months of commencement of the act. Counseling facility to be provided for senior citizen district hospitals. Separate geriatric health facilities, hospitals and tribunal to dispose of cases of 80 years senior citizen within a maximum period of 60 days. We felt that after beyond 80 plus age, it's very difficult to maintain activities. Therefore, time limit we have reduced to take care of that. No provision of exceptional circumstances shall apply in that case. Maintenance, tribunal, and special police units have units to have office on the ground floor only, with such facilities such as ramp and toilets for senior citizens. Sir, humble Yes, request. Please, yeah. Relaxation and these all things we have made, and further we have this was referred to standing committee. The standing committee suggested new suggestions, and based on that we have further amended it, like punishment for violation of minimum standard, year imprisonment, fine up to 50,000 or both, role of maintenance officer strengthened. We have made it more deterrent, and video conferencing facility would be there at the time of case going on in tribunal. Everybody be able to see it. So IT enabled system has been included in implementation of this act. This was about the act. This livelihood for elderly and aging in dignity. Although this new policy we are going to introduce, this is actually earlier policy announced in 1999. 1999 has been now renamed as livelihood for elders and aging in dignity. We call it. Many number of new provisions we have made, like re-employment of opportunities for senior citizens, elderly self-help groups, promoting silver economy, promoting exclusive housing complexes for senior citizens, assisted living devices for senior citizens belonging to BPL families, home care services, use of science and technology, setting of daycare centers. So many new initiatives we have taken.
These have been mentioned in the new policy. Cabinet note has been prepared. It has been sent to cabinet. I hope both this new policy as well as new with amendment act will be passed by the cabinet, and in the coming winter session it will be passed. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आपके प्रेजेंटेशन से हमें ये पता चला कि कितनी योजनाएं हैं और एक्ट में कितने अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। तो हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये इन सारे प्रोविजंस के बारे में जानें और इनका कैसे हम अमलीकरण कैसे करें, कैसे अपने लीगल लिटरेसी, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में इन सारी चीज़ों को शामिल करें। धन्यवाद सर। दिल्ली पुलिस द्वारा एक सीनियर सिटीजन सेल का गठन किया गया था और आज हमारे बीच में इस सेल से जुड़े हुए अधिकारी दिल्ली पुलिस के श्री मनोज सी, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली हैं, और मैं इनको आमंत्रित करता हूं कि जिस तरह से दिल्ली की सीनियर सिटीजन सेल का निर्माण किया गया, जिस तरह से वो फंक्शन करती हैं 24/7, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में प्लीज़ हमारे पार्टिसिपेंट्स को अवगत करें। Manoj sir. Thank you very much, Ashutosh ji. Good morning, sir, and good morning to everyone. Delhi Police initiated the Senior Citizen Cell in the year of 2004, the month of June. From then, we are operating Senior Citizen Cell exclusively for senior citizens, catering to their needs, providing a safe and secure environment. So, the cell is headed by Joint CP rank officer, and it covers all the 15 districts of Delhi Police. So we have 15 districts in Delhi Police. All the 15 districts of Delhi Police has a separate senior citizen cell, which functions under the overall police headquarters senior citizen cell. Apart from this, we have a helpline number of 1291 and other local landline numbers along with the emergency number 112. These numbers are exclusively dedicated for the senior citizen distress calls. And for example, this year we have received around 337 distress calls from senior citizen. All have been responded immediately. The response time of Delhi Police with respect to this kind of distress call is 3.5 minutes to 10 minutes. Within this range, we respond. We have initiated many initiatives under this cell for catering the needs of senior citizen. The start of this initiative was to identify and register the senior citizen. That is a basic where you collect the data, where your senior citizens are there, and what is their status, who are there with them, whether they are alone or they are with the family, who are their servants, maids, etc. So the first process of this is identify the senior citizens. So we send our beat policing officers to the local areas and identify how many senior citizens are there in their concerned beat. And the beat data is collected to the police station level, police station data is collected to the district level, and the district data is collected towards the headquarter level. Once the data is collected, we ensure that all the senior citizens are registered. So we register the senior citizen, we have a separate pro forma, and there are 7 modes of registration, starting from using the helpline number and senior citizen app, Google Play Store, and we have email ID. सर अगर आप हिंदी भी यूज करेंगे साथ साथ में तो हमारे पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा लाभ हो। सर हिंदी भी अगर साथ साथ में यूज कर सकें आप, हिंदी। मैं कोशिश करता हूँ हिंदी। जी जी जी, प्लीज सर या जी। मनोज हिंग, जहाँ तक हो सके इंग्लिश यूज करो यार। एक लाइन अंग्रेजी का, एक लाइन हिंदी का। आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू मस्ट बी फेसिंग, बस चलो ठीक है सर। थैंक यू सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर हिंदी में बात करने के लिए सर। तो हमारा सीनियर सिटीजन सेल में सर 7 मोड में हम रजिस्टर करते हैं सर सीनियर सिटीजन को। जो पहला मोड होता है सर, जो हमारा टेलीफोन नंबर्स और इमरजेंसी के नंबर्स है 112, इसके अंदर हम रजिस्टर करना शुरू करते हैं सर। उसके बाद इनके पास बीट ऑफिसर्स भी इलाके में जब जाते हैं सर, शाम की पेट्रोलिंग के टाइम में भी और सुबह के टाइम में भी, हम इंश्योर करते हैं ये जाके सीनियर सिटीजन से मिलें और उनकी डेटा कलेक्ट करें, प्रोफार्मा में फिल करें, उसके बाद इसको अपलोड करते हैं सर। इसके अलावा ऑनलाइन में भी हम ऑप्शन रखे हैं सर इसको रजिस्टर करने के लिए। एंड आखिरी मोड है सर जो गूगल प्ले स्टोर में जो सीनियर सिटीजन ऐप है उसके तहत भी हम रजिस्टर करते हैं सर इसकी। एक बार रजिस्टर करने के बाद हर एक सीनियर सिटीजन की अलग आईडी कार्ड इश्यू होती है सर, जिसमें इनकी फोटोग्राफ होती है, वो अटेस्ट होती है एक गेजेटेड ऑफिसर रैंक की। इधर लोकल एसडीपी ऑफिसर अटेस्ट करते हैं सर इसको, या डीसीपी रैंक ऑफिसर अटेस्ट करते हैं।
और ये डेटा कोलेक्ट होते पुलिस हेडक्वार्टर लेवल पे मेंटेन होती है सर। आफ्टर रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर हम इनकी विजिट शुरू करते हैं। एवरी डे हम शाम के टाइम में 5 सीनियर सिटीजन को हर बीट में कवर करने के लिए इंश्योर करते हैं। हर थाने में सर मैक्सिमम बीट्स है 12 और मिनिमम बीट्स रहती है 10-12 बीट में एक बीट में कम से कम 5 सीनियर सिटीजन कवर करेंगे तो हर दिन में 50 सीनियर सिटीजन मिनिमम हम कवर करते हैं सर। कवर करने के समय में हम इनकी सर्वेंट्स, टेनेंट और या कौन कौन इनके साथ में काम कर रहे हैं, किसी और के साथ में इनकी इंटरेक्शन रोज हो रही है, स्विगी जोमेटो कौन कौन आ रहा है रेगुलर, ये भी हम चेक करते हैं। इसके अलावा सर इनकी जो घर पे लॉक्स है, चेन है, मैजिक है, ये क्या क्या सिक्योरिटी सिस्टम रखा है, सीसीटीवी लगा रखा है नहीं है, ये भी चेक करते हैं। अगर कहीं इनकी मदद चाहिए सीसीटीवी लगाने के लिए भी और इस तरफ की सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए भी मदद चाहिए, वो भी हम इनको हेल्प करते हैं सर। इसके अलावा हर महीने एक सीनियर सिटीजन की मीटिंग होती है सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है और इस मीटिंग में हम हर एक RWA प्लस हर एक बीट से पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं, उनसे ग्रीवेंसेस कोई है तो वो उसको सुनने के बाद रिट्रेस ग्रीवेंस आउट। हमारा MPV एक व्हीकल होती है सर जो पुलिस कंट्रोल रूम की वैन्स होती है, वो 24 घंटे काम करती है सर। उस पुलिस वैन्स में जो प्राइमरी ड्यूटी होती है इनकी, रात के टाइम में कोई डिस्ट्रेस कॉल आ गया या जो ऑड आवर्स है उसमें कोई डिस्ट्रेस कॉल आ गया है, उसमें इनको रेस्पॉन्ड करने के लिए प्रायोरिटी देने के लिए ऑलरेडी डायरेक्शन दे रखे हैं सर। इसके अलावा MPVs रेगुलर भी जाके शाम के टाइम में चेक करते हैं सीनियर सिटीजन ठीक है नहीं है। जो रिसेंटली मेरा डिस्ट्रिक्ट में, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी सर एक हमने इनिशिएटिव लिया है रिकनेक्टिंग हार्ट्स नाम की। उसमें शाम के टाइम में जो अकेले जो रहते हैं, जिनकी फैमिली या परिवार दूर है या फॉरेन में है, तो उनको हम उनकी परिवार के साथ में कॉल करते हैं सर, वीडियो कॉल करवाते हैं। वीडियो कॉल के साथ में हमारा पुलिस ऑफिसर या पुलिस स्टाफ है वो भी साथ मौजूद होते हैं और वो इनको दिखाते हैं हम पुलिस आपके साथ में है, आपकी पेरेंट्स के साथ में है, तो आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपके पेरेंट्स हमारा हाथ में है और हम टेक केयर कर रहे हैं इसकी। इसके अलावा सर एक एडवाइजरी बॉडी भी होती है सर, जो दिल्ली पुलिस की लेवल पे, एंटायर दिल्ली के लेवल पे सर, वो हर 3 महीने में एक बार इनको हम इनवाइट करते हैं सर एक मीटिंग रखने के लिए। इसमें इनके अलग अलग ग्रीवेंसेस जितना भी है सर वो रेज करते हैं, उसको नोट करके रिड्रेस करते हैं। इसमें सिर्फ पुलिस के रिलेटेड ग्रीवेंसेस नहीं होती है सर, हर तरह की ग्रीवेंसेस होती है, जो MCD के रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड, वो भी ग्रीवेंसेस हम कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख के लेटर के थ्रू पे या वैसे ही बात करके लाइजन करके इसको सॉर्ट आउट करते हैं सर। इसके अलावा भी हम इनकी जो बर्थडेज होती है सर, उसमें ग्रीटिंग कार्ड्स, सेलिब्रेशन विद केक एंड वी उनकी जो पोता पोती है उनकी बर्थडे के टाइम में उनको वीडियो कॉल करवा के उनके सामने केक कट करना, इस तरफ की इनिशिएटिव्स भी हमने करते हैं सर, सो दैट हम जितना नजदीक इनके साथ पहुंच सकते हैं सर उतना नजदीक हम पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं सर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। और हमें ये बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली और कितना कितना काम आपकी सेल कर रही है और बहुत सराहनीय काम है और मेरे ख्याल से एक मॉडल के रूप में दिल्ली पुलिस ने ये सेल का गठन किया और ये फंक्शनिंग कर रही है, तो बाकी स्टेट्स के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि इसको कैसे रेप्लिकेट किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी अगली वक्ता को इनवाइट करना चाहूँगा। इस देश में वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं जिनमें हेल्पेज एक अग्रणी भूमिका निभा रहा, परसों से इस भूमिका को निभा रहे हैं। और हेल्पेज किस तरह से अपना काम वरिष्ठ नागरिकों के साथ में करते हैं, क्या क्या सुविधाएं वो प्रदान कर पा रहे हैं, कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने आती हैं और कैसे वो अपनी जर्नी को उन्होंने किया है। देश के अलग अलग राज्यों में उनका प्रोग्राम चल रहा है। तो हेल्पेज के पॉलिसी एंड रिसर्च एडवोकेसी हेड अनुपमा जी को मैं इनवाइट करूंगा उनके प्रेजेंटेशन के लिए। अनुपमा जी। थैंक यू आशुतोष जी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। अच्छा लगा जो पहले के वक्ता थे जो उन्होंने बात बताई उसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सरकार इतना एफर्ट कर रही है, सरकार की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है इंक्लूडिंग द पुलिस, वो कितना कोशिश कर रहे हैं एल्डरली की लाइफ को आसान बनाने के लिए, उसको सुन के अच्छा लगा। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो चैलेंजेस होते हैं एजिंग के, वो जब आप
कम्युनिटी में काम करते हैं लोगों के साथ, तो हमें उसको मेगा इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना पड़ता है माइक्रो लेवल पे। अगर आपको मैं देश के बारे में बताऊं तो आई कैन शो यू अ लॉट ऑफ स्लाइड्स अबाउट द डेमोग्राफिक डेटा कि कितना महिला पुरुष का कितना अनुपात है एल्डरली में, उनकी लॉन्जेविटी क्या है, 80 साल से ज्यादा कितने लोग हैं उनके इस देश में जिनको स्पेशल केयर की जरूरत है, उनको कितनी कोमॉर्बिडिटीज हैं। कोमॉर्बिडिटीज अगर आप कॉमन भाषा में समझाऊं तो कितने लोगों को एक से ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज और ये सब तरह की। और आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कि ज्यादातर एल्डरली को हड्डियों की परेशानी ज्यादा होती है, घुटनों में दर्द ज्यादा होता है, जिससे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। तो अपने घर में भी घूमने में शायद दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। तो उसके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं? एक बहुत ही छोटी सी बात है कि अगर हाउ इंडिपेंडेंट एम आई, और अगर मैं महिला हूँ और मैं अगर 80+ हूँ और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है कोई हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प या किसी तरह का हेल्प को पैसे देने के लिए, तो मैं कितना फैमिली पर डिपेंडेंट हो जाऊँ। तो इसमें जो कम्युनिटी, क्योंकि हम कम्युनिटी लेवल वर्कर्स से बात कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू से कि आपको सबसे पहले उनका जो चैलेंज एजिंग में होता है वो होता है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो इस देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ पे कि कोई खास सोशल पेंशन की या कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन की ज्यादा स्कीम्स नहीं है, और जो सरकार ने चलाई भी हैं तो वो बहुत सारे लोगों को केटर नहीं कर पाते हैं। उसमें आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कि इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम में सरकार इनरोल करती है एल्डरली को, जो कि जिनको जरूरत है पैसों की और उनकी फैमिली उनकी देखभाल नहीं कर सकती, जो बीपीएल फैमिली से आते हैं। लेकिन उसमें भी अमाउंट का बहुत चैलेंज होता है कि कितने पैसे एक महीने में एक एल्डरली को लगेंगे अपने भरण पोषण करने के लिए। तो आप में से कितने लोगों को पता है, मुझे नहीं पता, कि भारत सरकार उसमें 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन करती है और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से करते हैं। तो कुछ गवर्नमेंट्स ज्यादा करते हैं, जैसे कि दिल्ली की सरकार है वो ज्यादा करती है, गोवा की सरकार ज्यादा करती है, लेकिन कुछ सरकारें जो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते और जो भारत सरकार देती है वही पैसे लोगों को देते हैं। अगर 200 रुपए मैं आपसे पूछूं कि 200 रुपए कितने दिन चलेंगे एक एल्डरली के लिए, अगर उसको और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इट इज एनीबॉडीज गेस, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज वो होता है, और उस चैलेंज के चलते एल्डरली अपने फैमिलीज में भी मार्जिनलाइज हो जाते हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे देखभाल उतनी होगी जितनी होनी चाहिए या हो सकती है, या कभी कभी नेग्लेक्ट का शिकार भी होते हैं वो लोग, और सेल्फ नेग्लेक्ट भी करते हैं वो लोग, और महिलाएं पर्टिकुलरली, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर हम देखेंगे कि हाउसवाइफ होती हैं या अपने नौकरी वगैरह छोड़ देते हैं जल्दी ही लाइफ केयर ऑफ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उनके पास ज्यादातर करके कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता बुढ़ापे में। और अगर लॉन्जिविटी की मैं बात करूं तो आपको जान के आश्चर्य होगा या पता नहीं होगा कि अगर हम 60 साल की महिला को देखें तो उसका एवरेज लाइफ स्पैन 60 साल के बाद कम से कम 20 साल का होता है, जबकि पुरुष का सिर्फ 17 साल का होता है एवरेज लाइफ स्पैन। तो longevity of a woman is more than that of a man. She has less economic resources to fall back on. तो उससे क्या होता है कि डिपेंडेंस ऑन फैमिली बहुत बढ़ जाती है, और डिपेंडेंस ऑन फैमिली बढ़ती है तो हमारे हेल्पलाइन में कई दफा ऐसे केसेस भी आते हैं कि एल्डरली को फैमिलीज खुद ही कहते हैं कि जाओ बाहर, मैम आप म्यूट हो गई हैं, आपका मैम ऑडिबल नहीं है आप। कनेक्टिविटी का शायद जो बहुत लोग जीते हैं और बहुत लोग फेस करते हैं। सेकंड आप देखेंगे चैलेंज तो हेल्थ का चैलेंज होता है, जैसा कि मैंने कहा। तो उसमें एक तो ये बात हो गई कि जो लोग के पास एक्सेस टू हेल्थ केयर है, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में जा सकते हैं, जो ईएसआई में कवर्ड है, सीजीएचएस में कवर्ड है, जिनके पास इंश्योरेंस है या जैसे भी है, वो बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी है। तो वो लोग तो चले एक्सेस के लिए हेल्थ, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर करके वो चाइल्ड। मैम अगर कनेक्टिविटी का इशू है तो वीडियो ऑफ करेंगे तो आपका ऑडियो और क्लियर हो जाएगा।
हैं। मैम इंटरनेट कनेक्टिविटी का अगर प्रॉब्लम है में से जो तो आप वीडियो टर्न ऑफ करेंगे तो आपका ऑडियो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा, तेज सुनाई देगा थोड़ा आपके एंड से। हाँ अच्छी जी जी, आपने जो लास्ट फ्यू सेकंड्स में बोला है उसे रिपीट कर दीजिए। के पास सुविधा नहीं होती है, आपकी आवाज तो आप- नहीं आ रही है। आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या तो डिस्ट्रिक्ट जी होता है या तो सीएचसी होता है, और सीएचसी हेल्थ का दो एस्पेक्ट हो गया। एक तो बहुत सारे एल्डिक ऐसे हैं जो एनसीडी के सफर करते हैं, हाइपरटेंशन होता है लेकिन पैसे नहीं है तो इसलिए दवाई नहीं खाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेंटल डिप्रेशन का शिकार है लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, कहाँ जाए। जबकि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेंटल हेल्थ का एक पूरा प्रोग्राम चलता है, लेकिन वो एल्डरली को स्पेसिफिकली केटर नहीं करता। और जब तक हम अपने सर्विसेज को एल्डरली को स्पेसिफिकली केटर नहीं करेंगे तब तक वो सर्विसेज उन तक पहुंचनी बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि पहली बात तो ये कि समाज को देखता कैसे है, हाउ यूजफुल डू यू थिंक दे आर। अगर बच्चे को चोट लगती है तो ज्यादातर बायस होता है फैमिलीज का कि वो चट से उसको ठीक करते हैं। अगर अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, अगर उसकी नीड है और एल्डरली की नीड है, तो कंपैरेटिवली जो अर्निंग मेंबर है उसकी नीड को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये एल्डर अब्यूज बाय डिफॉल्ट है, इसमें कोई एक्टिवली एल्डर अब्यूज नहीं कर रहा है लेकिन बाय डिफॉल्ट वो अब्यूज हो रहा है और हम उसको मॉरली जस्टिफाई करते हैं। एल्डरली पेरेंट्स भी मॉरली जस्टिफाई करते हैं ये कह के कि मेरे फैमिली बेचारे कितना देखेंगे मुझे, उनका भी तो लिमिटेशन है और अब मैं जी के ज्यादा क्या करूँ। तो ये जो पर्सपेक्टिव की बात है, जो सोच की बात है और जो सुविधाएं प्राप्त होने की बात है। हाउ मेनी एल्डरली हैव यू सीन हु आर असर्टिव इन सोसाइटीज? आपके आसपास जो एल्डरली के साथ अगर आपने कभी काम किया होगा तो कितने लोग आपको असर्टिव नजर आते हैं कि वो कहते हैं हाँ ये हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए? बहुत कम मिलेंगे आपको ऐसे एल्डरली। वो ज्यादातर बोलते हैं नहीं 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 मेरे ग्रैंड चाइल्ड को दे दीजिए, मेरे घर में जो महिला है उसको दे दीजिए या जो भी करके। तो ये एक बहुत सोच को डील हमें करना है और जो सिस्टम में एजिज्म रहता है हम तो उसको डील करना बहुत चैलेंज बात है। उसी बात इमोशनल केयर, आप किसी को खाना देते हैं लेकिन अगर आप उसको अपमान करके खाना देते हैं, अगर आप उसको उसकी जरूरत है 2 बार खाने की, आप एक ही बार देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी बहुत बड़ा ट्रॉमा रहता है उसके लिए। व्हाट इज द सेल्फ वर्थ अ पर्सन फील्स। और अगर उसको हम ओल्ड एज होम में ले जाएं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको मीना सर ने बताया अभी कि भारत सरकार बहुत सारे स्कीम्स चलाते हैं ओल्ड एज होम्स के लिए। ओल्ड एज होम में क्या हम उसको देना चाहते हैं? क्या सिर्फ एक शेल्टर और एक फूड एंड क्लोथिंग या वही सब है? इमोशनल केयर का हम क्या करेंगे? ट्रॉमा का हम क्या करेंगे? और अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में ओल्ड एज होम इज नॉट अ फर्स्ट चॉइस, इट इज अ चॉइस बाय डिफॉल्ट। अगर मेरे पास कोई नहीं है देखभाल करने के लिए, अगर मेरे पास कोई और चारा नहीं है, तभी मैं ओल्ड एज होम में जाती हूँ। फर्स्ट चॉइस में नहीं जाती हूँ लाइक पीपल इन द वेस्ट गो, दे गो एज अ फर्स्ट चॉइस। और क्या जिस तरह की पॉपुलेशन हमारे पास है, जिस तरह का खर्चा ओल्ड एज होम चलाने में आता है, क्या वो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन हमारे लिए है? वो भी हमें सोचना है। क्योंकि अगर हम डेमोग्राफिक्स में ही देखें तो अगले 30-35 साल में 20% भारत की जनता इस 60+ कैटेगरी में आ जाएगी। तो क्या हम उन सबको ओल्ड एज होम में रख पाएंगे? क्या उनकी देखभाल कर पाएंगे? फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। विमेन जो मेजर केयर गिवर्स थे, अब वो मेजर केयर गिवर्स का रोल नहीं प्ले करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। जो महिला पहले जिसके 3 एवरेज बच्चे थे, आज उसके एवरेज बच्चे 2 से कम है। तो हु विल टेक केयर ऑफ दीज पीपल? एंड अगर नौकरी मेरे गांव में नहीं मिलती, मुझे बाहर जाना है, तो रेजिडेंस के पैटर्न्स भी चेंज हो जाएंगे। तो इनफॉर्मल केयर स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है, जो अभी भी हमें दिख रहा है। तो क्वालिटी ऑफ केयर, हु इज अवेलेबल टू टेक केयर, और उसमें मार्केट का क्या रोल है और कम्युनिटी का क्या रोल है, ये सब हमें एज ए सोसाइटी हमें सोचना है। तो जब जैसे मीना जी ने कहा कि हम एक नई पॉलिसी की ओर जा रहे हैं, तो नई पॉलिसी जो 1999 में बनी थी वो उस संदर्भ में बनी थी, उस हिसाब से बनी थी। लेकिन अब जो पॉलिसी हम बना रहे हैं, जो हम समझते हैं कि 2050 तक शायद चलेगी हमारे साथ, तो हमें ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में उसको ध्यान में रखना है। प्लस एक बहुत बड़ी बात जो एक और नया फैक्टर आ गया कोविड के बाद से, वो ये आ गया कि टेक्नोलॉजी का यूज और उसमें एल्डरली की कितनी सहभागिता है। जो टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं वो एल्डरली के नीड्स को कितना ध्यान में रखते हैं जब वो एक कोई डिवाइस या कोई चीज डिजाइन करते हैं।
और मार्केट में उसकी एक्सेसिबिलिटी। अब आपको जैसे भारत सरकार की स्कीम के बारे में बताया मीना जी ने कि वो बहुत तरह के असिस्टिव डिवाइसेस लोगों को फ्री में देते हैं। उस डिवाइस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या कैसे कैसे वो बेटर यूज हो सकती है, गांव के लिए वो अडेप्टेबल है या नहीं, उसको कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, वो सब चीजें हमारे साइंटिस्ट को भी देखना है, वो सब चीजें हमारे स्टार्टअप वाले लोगों को भी देखना है। तो ये बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं वो हमें देखने हैं। प्लस अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सारी व्यवस्था जो है वो डिजिटल बन जाए, सब जैसे एक्सेस डिजिटल हो जाए, सब कुछ हम डिजिटल कर लें, तो हमें ये भी देखना है कि एल्डरली का क्या कितना एक्सेस है उस डिजिटल डिवाइसेस के लिए, उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस डिजिटल डिवाइस के लिए। पुलिस के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बात नहीं की, लेकिन साइबर क्राइम्स आर अ बिग इशू। जो एल्डरली यूज नहीं करना जानते हैं उसके पैसे कैसे स्विंडल हो सकते हैं हम सब जानते हैं, और उसका अकाउंट इतना छोटा रहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा सकता। लेकिन उस महिला के लिए जिसके 5,000 या 500 रुपए चोरी हुए हैं डिजिटल माध्यम से, उसके लिए वो 500 रुपए बहुत क्रूशल होते हैं। फॉर हर इट इज मोर देन 50,000 maybe, or maybe 5 lakhs. But for the system, it is only 5,000 rupees, for which we cannot, ask our system to just leave everything else and go behind on that. तो साइबर का भी एक बहुत बड़ा रोल है, प्रेपरेशन का रोल है, हमारे सिस्टम्स का रोल है। जैसे आपको बताया कि मेंटेनेंस एक्ट की बात बताई, आपको पुलिस कैसे मॉनिटर करती है सीनियर सिटीजन्स को, ये बात बताई। लेकिन हमारे एल्डरली में कितना फेथ है उस सिस्टम पे, ये भी बहुत बड़ी बात है। जब हमने बहुत बार हम सर्वे करते हैं भारत के पूरे बहुत सारे हिस्सों में, और पाते हैं ये कि सब जानते हैं कि पुलिस इज ऑल्सो द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। लेकिन कितने लोग पुलिस के पास जाते हैं और कितने लोगों को पुलिस की सहायता की जरूरत होती है? क्या हम ये जो इश्यूज फैमिली के साथ आते हैं, क्या हम किसी और फोरम में डील कर सकते हैं? तो जो मेंटेनेंस एक्ट की बात हुई, उसकी रिव्यू की बात हुई, उसमें ये भी बात होनी चाहिए कि कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए उसमें। आप जैसे लोग जो विलेज लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे काम करते हैं, वो लोग कैसे फैमिली को साथ बिठा के बात कर सकते हैं, कंसिलिएशन में मदद कर सकते हैं। क्योंकि हर 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 झगड़ा जो है वो पुलिस में जाने लायक नहीं होता, और हर जगह को जाना भी नहीं चाहिए। जब इनिशियली ये मेंटेनेंस एक्ट को इन्विजन किया गया था, तो यही सोचा गया था कि हाउ टू रिकंसाइल द फैमिली एंड लेट फैमिली टेक केयर ऑफ द एल्डरली। अगर आप 99 की पॉलिसी देखेंगे, उसमें फैमिली को बहुत बड़ा रोल दिया गया, लेकिन ये भी कहा गया कि जो सरकारें हैं वो प्ले करने में, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपके स्टेट लेवल पे, क्योंकि पॉलिसी तो स्टेट लेवल पे भी बनती है, नेशनल पॉलिसी तो मॉडल पॉलिसी है, तो उस लेवल पे आप कैसे डिफरेंस में कर सकते हैं? क्या हम वॉलंटियर्स बना सकते हैं जो एल्डरली को हॉस्पिटल तक ले जाए? मैम क्या हम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कर सकते हैं जो उनका बीपी और वो सब मॉनिटर करता है? मैम It is आपसे very important for first responders to be sorry. मैम आशुतोष जी, मुझे कह रहे हाँ, हैं? अगले 1-2 मिनट में प्लीज से कंक्लूड करिए आप। हाँ, जी I'll just actually finish it. जी थैंक्स। And actually, I thought it will be more interactive. People will be asking me more questions anyway. तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट जो I want you to take home is this fact कि बहुत मेगा लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत पॉलिसीज, बहुत प्रोग्राम्स बनते रहेंगे, लेकिन हमें उसको लास्ट माइल पे हम कैसे उसको रेलेवेंट बनाए एल्डरली के लिए, जिसकी एक्सेस में बहुत बड़ी चैलेंज होती है। उनको इंफॉर्मेशन कहाँ जाके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से वो विलेज या कम्युनिटी लेवल पे ही होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। आपने जो चैलेंजेस हमें बताई हैं सीनियर सिटीजन्स की, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत वास्तविक हैं, और जिन्हें कलेक्टिवली ही उसे एड्रेस किया जाना चाहिए। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, कभी कभी उनका सामना, कभी कभी उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है, कभी कभी उनके अपनों द्वारा ही कोई ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके लिए उन्हें जुडिशरी को अप्रोच करना पड़ता है, और विवादों के निपटाने के लिए क्या विधिक सहायता उनको मिलती है, क्या सिचुएशन है, इस संबंध में मैं
दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड माननीय न्यायाधीश श्री राजीव सहाय एंडला जी को निवेदन करूंगा कि हमें इस विषय पे स्पेशली हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो जिस तरह के स्पेशली प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड और लीगल एड जो प्रोविजंस अवेलेबल हैं उनके लिए स्पेशली इस बारे में सर आपका हमें अनुभव प्लीज शेयर करिए सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच आशुतोष जी। मेरे को इतनी सारी चीजें आप लोगों को नहीं बताने जितना के और स्पीकर्स ने बताया। मैं सिर्फ आपके सामने 2 या 3 बातें ही। सबसे पहली बात ये है कि जब एक आदमी सीनियर सिटीजन की एज पे चला जाता है, एंड आदमी आई मीन वेदर मेल और फीमेल, तो प्रॉपर्टी राइट्स बढ़ते ही हैं, कोई घटते नहीं है। बहुत बार ये होता है कि जो मैंने अपने सर्कल में देखा है या जो मैंने एज ए लॉयर या एज ए जज देखा है कि लोगों को लगने लगता है कि भाई अब मैं ज़्यादा उम्र का हो गया तो मेरे को प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है और मैं प्रॉपर्टी को किसी बच्चे के नाम में कर दूं या किसी और के नाम में कर दूं। तो सबसे या फिर क्या मैं इसको डील नहीं कर सकता हूँ प्रॉपर्टी। तो जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बतानी है जो सीनियर सिटीजन जिन सबके साथ आप लोग काम करते हैं कि एज अ सीनियर सिटीजन द राइट्स डू नॉट डिमिनिश, एंड इफ एट ऑल दे चेंज फॉर द बेटर। जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है इन माय 40 years करियर एसोसिएटेड विद लॉ, एक मिसकंसेप्शन है पर्टिकुलरली अमंग्स द हिंदूज के उनके लड़के का जो उनकी जायदाद है उसमें जन्म से अधिकार है। ये बहुत कॉमन, मतलब इतने सारे केसेस फाइल होते हैं इस चीज पे, मैं दिल्ली के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जिसपे ये बिल्कुल गलत है। और सिर्फ कॉमन मैन को ही नहीं है, बहुत सारे लॉयर्स को भी ये मिसकंसेप्शन है कि लड़के का हक। और फिर 2005 में एक अमेंडमेंट हुई थी तो उसमें उन्होंने इक्वल कर दिया था लड़के और लड़की को। तो बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि जन्म से अधिकार है तो जो मेरी प्रॉपर्टी है अब वो मेरी नहीं रही, उसमें मेरे अगर 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों का भी है, तो मैं अकेले उस प्रॉपर्टी से कुछ नहीं कर सकता। वो जो कानून है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज के लिए है जो आज की तारीख में बहुत कम है, और अगर हैं भी तो बहुत जो हायर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है उसमें वो कानून एक ओल्ड हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट है। तो बट 1956 में जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था तो उसमें पुराना जो एंशिएंट हिंदू लॉ था वो पूरा चेंज कर दिया गया था। एंशिएंट हिंदू लॉ में ये होता था कि भाई लड़के का जन्म से अधिकार होता था बाप दादा की प्रॉपर्टी में, पर 1956 के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है जो आपने अपने पैसे से बनाई है या आपको कहीं से गिफ्ट मिली है, उसमें आपके लड़के या लड़की किसी का कोई हक नहीं है, वो आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रहती है। अगर जद्दी या इनहेरिटेड, जैसे कि अगर आपने अपने फादर से इनहेरिट करी है तो कोई बच्चों का अधिकार नहीं है, provided the father has died after 1956, which will be a case in most of the cases now. So that is something which I feel needs to be clarified by all the people who deal with senior citizens. जो मैंने कहा कि बेटर हो जाते हैं राइट्स, वो मैंने इस कारण से कहा जो ये मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन इन द सेंस के पेरेंट्स की लॉ है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया था जिसमें देयर वाज अ ऑब्लिगेशन ऑन चिल्ड्रन टू मेंटेन देयर पेरेंट्स, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए 2007 में जो मीना साहब ने आपको कानून बताया वो आया। मैं एक कानून का और जिक्र करना चाहूँगा जो जिसका यूज इस एंगल से अभी तक बहुत कम हुआ है। एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी आया था
प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, तो जो फीमेल सीनियर सिटीजन हैं वो उसके तहत भी जा सकती हैं और अपना हक एसर्ट कर सकती हैं। और इन दोनों में ये है कि बहुत वाइड कर दी गई है पावर्स। माय एक्सपीरियंस विद सम ऑफ द पुलिस स्टेशंस, आपको बताया डीसीपी साहब ने कि सीनियर सिटीजन सेल है। vis-a-vis my in-laws in Delhi, I have had very good experience of the police. What all he told you, I have seen it happening with their house, because they were living alone to the extent when they came and started living with us. Even then, from that police station, they used to receive a call every 15 days or every 1 month to find out whether we were troubling them or anything. So that is a very salutary effect. And I feel if that is strengthened, because I have personally seen how much strength that call used to give to my father-in-law and mother-in-law, and to my mother-in-law after my father-in-law was no more. That one call, gave her a lot of strength, made her very spirited, that all right, it's not as if anybody can do anything to me. So that is a very salutary thing, and which is a direct contact of the people. Now the other thing, तो अगर किसी भी तरह की harassment, और इसमें जो सीनियर सिटीजन एक्ट है 2007 वाला, उसमें ये है कि आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी बच्चे के नाम गिफ्ट भी कर दी है या डॉटर इन लॉ के नाम कर दी है, और अगर आपने उसमें ये नहीं भी लिखा कि भाई आप वो मेंटेन करेंगे बाद में, क्योंकि अब आपके पास कोई जायदाद नहीं रही या कोई प्रॉपर्टी नहीं रही, तब भी आप सीनियर सिटीजन एक्ट में अर्जी डाल सकते हैं अगर वो आपको निगलेक्ट करते हैं। और उस एक्ट के तहत पावर है एसडीएम को कि वो उस ट्रांसफर को, उस गिफ्ट को एनल कर सकता है। ये भी जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत कम लोगों को अभी तक पता है और बहुत कम लोग इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो तीसरी चीज मैंने सीनियर सिटीजन्स के बारे में देखी है कि उनको प्रॉपर्टी से डील करने में बहुत कम हेजिटेशन होती है, और उसी कारण से वो क्या करते हैं कि भाई वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं किसी ना किसी को, या वो ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉपर्टी को कि मैं तो डील नहीं कर पाता। अब उसका तरीका आप लोगों को, सिंस ऑल ऑफ यू आर देयर, you have to see, first of all, invariably what we hear is कि पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने बेचने के लिए नहीं दी थी, पर जब किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी, नॉर्मली फैमिली मेंबर्स ही साइन कराते हैं, जब वो साइन कराते हैं तो वो उसमें सेल की पावर भी ले लेते हैं। तो अब पता ही नहीं लगता है सीनियर सिटीजन को कि मेरी प्रॉपर्टी सेल हो गई, या लड़के के नाम में पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, उसने अपनी वाइफ के नाम में सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी। जब उनका निगलेक्ट होना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे उन्हें पता लगता है कि अच्छा, ये तो 10 साल पहले ही मेरे नाम से जा चुकी है प्रॉपर्टी। तो एक जो मेन प्रॉब्लम आती है वो सिक्योरिटी की आती है कि भाई टाइटल डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे अपनी प्रॉपर्टी के, या फिक्स डिपॉजिट। ज्यादातर मैंने देखा है फिक्स डिपॉजिट्स एट दैट एज, इन्वेस्टमेंट्स और डीलिंग इन शेयर्स का तो अब डिपॉजिटरी हो गया, पर वो कम होता है, और दैट्स अगेन लिमिटेड टू अ वेरी small strata of the society. The larger strata of the society keep their money in cash or in fixed deposits or in the post office receipts. The biggest problem which they find is that there is no security where to keep these documents, and invariably the children take it away, and by forging signatures or getting the paper signed from them without knowing, they encash those things. So that is one area which, according to me, requires some looking into by all of you who are doing so much work in this. एक और चीज आता है कि बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट्स में अपने बच्चों का आइदर या सर्वाइवर अकाउंट करा लेते हैं कि भाई अच्छा, मेरे सिग्नेचर्स अब नहीं मिलते, चेक साइन करने में प्रॉब्लम होती है। तो वो उससे ये होता है कि
दोबारा से जिसके साथ भी कराते हैं उसको पावर हो जाती है वहां से सारा पैसा निकालने की. So we need to tell them more about nomination and about execution of wills. People generally do these things because they feel कि मैं will में करूंगा तो झगड़े होते रहेंगे. They want to give to one of the children or a larger share to one children over the other. तो उनको इस कारण से वो गिफ्ट एग्जीक्यूट कर देते हैं कि मैं अपनी लाइफ टाइम में ही दे दूं, पर वो करने के बाद उनके हाथ से होल्ड चला जाता है और उसके बाद हरासमेंट शुरू होती है. तो वी नीड टू the organizations which are dealing with senior citizens, maybe they need to address the issue of that how to assist them in making a foolproof will or in registration of the will and the depository of the will. There is no place where to entrust the will. See, we have to face the hard truth that today hardly anybody has friends who are willing to step out and take on this onerous responsibility. The family members in any case don't want to interfere or appear to act favoring one child and not favoring the other. So there is a real dearth of trusted people with whom the senior citizens can take assistance or guidance that how to go about these affairs. My experience is that we as Indians are very well aware of our rights. So most of the senior citizens are aware today. Again, I speak from my experience of their rights. The problem is in access to justice. मेरी डॉक्टर रोजेश से बात हो रही थी तो मैंने कहा था we in all courts we have legal aid cells, but उसको अप्रोच करने का नहीं पता होता लोगों को. तो जैसे हम लोग हर एक कॉलोनी में अगर इस सब चीज का अवेयरनेस करते हैं और in every cluster there are all these numbers are written or the legal aid clinic people can go there, then according to me all these things will translate into reality. Thank you. थैंक यू सो मच सर. आपने जिन जिन विषयों को हम सबके बीच में आपने रेखांकित किया है, स्पेशली जो बाई बर्थ राइट्स है, हम अज्यूम करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, उसे आपने बिल्कुल क्लियर किया. पावर ऑफ अटॉर्नी, गिफ्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपने क्लियर किया. और जो एंड में आपने हाईलाइट किया कि एक्सेस टू जस्टिस है, लेकिन हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसको अप्रोच करेंगे, वहाँ पे भी हमें और क्या क्या करने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच. आपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए सर, हम सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल हैं. हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा एक एक्सेस टू जस्टिस डिवीज़न के तहत लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने करीब 13 पार्टनर्स को सेलेक्ट किया था और ये देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं. हमारे साथ में एक जुड़ी हुई संस्था सीको डिकॉन है जो राजस्थान के 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और स्पेशली वो 3 विषयों पे काम करते हैं जिनमें वरिष्ठ नागरिक के साथ में उनका जो अनुभव रहा है अभी तक, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि धरातल पे क्या स्थिति है और आपके क्या अनुभव रहे हैं. तो मैं निवेदन करूंगा संस्था के गोविंद जी से और आलोक जी से कि ब्रीफली अपने अनुभव को साझा करें, जो धरातल पे स्थिति है और आपके किस किस तरह के प्रयास हैं वहाँ पे. जी धन्यवाद. तो जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़. जी सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए, और धन्यवाद देना चाहूँगा मीना साहब का और आदरणीय सहाय साहब का, राजीव जी का और मैडम हेल्पेज से जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी.
जैसा कि मेरे साथ गोविंद जी आज यहाँ पर होने वाले थे, लेकिन उनको बहुत ही अर्जेंट से काम से एक दूसरे प्रोजेक्ट के काम से बीकानेर जाना पड़ा, तो अभी रास्ते में है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ सिकोडिकॉन संस्था की ओर से जो काम हम लोग कर रहे हैं दिल्ली पे। तो सबसे पहले छोटा सा परिचय। सिकोडिकॉन करीब 1982 से राजस्थान में काम कर रही है, और राजस्थान में अभी हम लोग पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं, और करीब 11 जिलों में हम लोग वल्नरेबल और एक्सक्लूडेड ग्रुप के साथ में काम कर रहे हैं। और हमारी कोर स्ट्रेंथ जो है वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी जो है वो मजबूत स्ट्रेंथ है। अगर हम एल्डरली के साथ या सीनियर सिटीजन के साथ एक्सपीरियंस की बात करें, तो अभी हम लोग, जैसा कि सर ने बताया, कि लीगल अवेयरनेस और लीगल लिटरेसी प्रोग्राम जो राजस्थान की 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है, जैसलमेर, बारां, करौली, धौलपुर और सिरोही। इसके अलावा इसके साथ ही हम लोग करौली में एक अलग से एल्डरली के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, खास करके उनकी लाइवलीहुड और उनकी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। और साथ ही साथ हम लोग राजस्थान के जो जयपुर, टोंक और बारां में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो हमारा काम है, उसमें भी हम लोग एल्डरली से जुड़े हुए इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो लीगल अवेयरनेस और लीगल लिटरेसी प्रोग्राम के जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अभी तक। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोगों ने, मतलब इसमें जैसे कि सर ने बताया, आशुतोष जी ने, कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को केंद्रित रखकर हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। और इस अभियान के तहत हमको जिन जिलों में हम लोग अभी जैसलमेर में इसको पूरा कर चुके हैं करीब करीब, और बारां में हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और यहाँ पे हम लोगों को खास करके डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का पूरा सहयोग, सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है। अभी जब ये कार्यक्रम हमने शुरू किया, तो हमारा प्रयास ये रहा कि सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करें कि किस जिले में किस तरह की, किस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा है, उनको ध्यान में रखते हुए हम उनसे जुड़े हुए कानून, उनसे जुड़े हुए अधिकारों की बात लोगों तक पहुंचाए। खास करके 3 जो मुख्य हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, बुजुर्ग, महिला और बच्चे। तो ये देखा गया कि जैसे जैसलमेर में हमने शुरू किया, तो जैसलमेर में जब हम लोगों ने शुरुआती बातचीत की कम्युनिटी के साथ जाकर के, गाँव में जाकर के बैठ करके, तो वहाँ जो महत्वपूर्ण बड़ा इशू निकल के आया वो था कि एक तो बच्चों की खास करके बच्चियों की पढ़ाई और बच्चियों के बाल विवाह का मुद्दा बड़ा महत्व से निकल के आया। और साथ साथ बुजुर्गों के बड़े मुद्दे ये थे कि सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच कैसे सुनिश्चित हो पाया। इस कार्यक्रम की एक और महत्वपूर्ण बात, जो यूनिकनेस मैं आपको बताना चाहूँगा, कि हम लोगों ने प्रयास, सामान्यतः एल्डरली पे जब काम करते हैं तो सामान्यतः प्रयास ये होता है कि शहरों में जो बुजुर्गों की समस्या है उन पर थोड़ा सा फोकस हो जाता है। लेकिन हमने इसमें प्रयास ये किया कि गाँवों में, और गाँव के अंदर भी, गाँव से भी छोटे जो हेमलेट्स बने हुए, जो ढाणियाँ बनी हैं, वहाँ तक हमारी पहुँच सुनिश्चित हो पाए। दूसरा एक महत्वपूर्ण इसमें प्रयास ये रहा कि कोशिश हमने ये की कि जहाँ भी हम लोग जो गतिविधियाँ, जो एक्टिविटीज़ हम लोग इस प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से अवेयरनेस ड्राइव है, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, यूथ के साथ में यूथ के ट्रेनिंग्स हैं, और इसके साथ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस तरह के आईसी मटेरियल उपलब्ध करवाना, इस तरह की स्लोगन्स वहाँ पर तैयार करवाना, ताकि लोग अवेयर हो सके उनके अधिकारों और ऐसी योजनाओं के बारे में जो उनको एड्रेस की जाती है। इस कार्यक्रम के जैसलमेर का एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने इसको शुरू किया जैसलमेर में, तो वहाँ शुरुआती तौर पे ये देखा गया कि ये कौन सा समूह, कौन सा ग्रुप है, क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा मतलब इस तरह से कि बहुत सारे लोग करते हैं, योजनाओं के बारे में बताते हैं, ये पता नहीं क्या नई बात बताने जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने कोशिश की कि गाँवों में जाकर के जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करना, यूथ में स्कूल के बच्चों के साथ जो सेशन लेना शुरू किया, तो उनको समझ में आने लगा कि खास करके जैसलमेर में देखें तो बच्चियों की, लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के एक बड़ा एक समाज में एक ये अभी भी एक तरह से ये विचार है कि
शायद लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजना थोड़ा सा, खासकर ग्रामीण समुदाय में, उतना महत्व उसको नहीं दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए स्कूल में प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल अच्छी स्कूल है या कोई भी अच्छी स्कूल है, तो अच्छी स्कूल में पहली प्रायोरिटी रहता है कि अच्छी स्कूल में हमारा कोई लड़का है तो लड़का अच्छे स्कूल में पढ़ने जाए। लड़की तो ठीक है, अगर 5वीं तक स्कूल है, 5th तक स्कूल है गाँव में, तो 5th तक भेज देंगे। उसके बाद में बड़े किसी शहर में स्कूल है तो वहाँ भेजना वो उनको, उनके लिए मुश्किल लगता है। उनको लगता है कि ठीक है 5वीं तक पढ़ ली, बहुत है। इस सोच को बदलाव लाने के लिए ये एक बड़े स्तर पे मुझे लगता है कि हालांकि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत सरकार का बहुत ही सशक्त अभियान है और उसके माध्यम से बहुत बदलाव भी आया है, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी काम करने की आवश्यकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम जो इसके तहत जो अभियान में जो आया वो ये आया कि यूथ वॉलंटियर्स को हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इस कैंपेन में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने कोशिश की कि यूथ वॉलंटियर्स को इस तरह तैयार किया जाए कि वो वॉलंटरली सर्विस दे पाए, खास करके उन लोगों के लिए जो बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, जो मान लीजिए कोई डोमेस्टिक वायलेंस से कोई महिला पीड़ित है, या किसी बुजुर्ग को कोई वृद्धावस्था पेंशन लेना है मगर उसको फॉर्म उससे फिलअप नहीं हो पा रहा है, या ऑनलाइन वो अपना स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं, या ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मदद के लिए हमने जैसलमेर में करीब 101 युवा वॉलंटियर्स तैयार किए हैं, जिनको ट्रेनिंग दी गई है और उनको ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार किया गया। उसके बाद में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी गई। आलोक जी एक निवेदन है कि स्पेशली जो हमारे जो वरिष्ठ नागरिकों के साथ में जो भी अनुभव रहे हैं, वो अगर आप पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि समय उतना नहीं है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपका एक आईसी मटेरियल जिसमें आपने स्लोगन ही ये दिया था कि जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हम उनका आज समय में इस अवस्था में उनका हाथ ना छोड़ें। तो ये किस तरह का, इसका कैसा रिस्पांस है, ऐसे और कितने प्रयास हैं? आप 1-2 मिनट में इसे बता के सम अप करें आप प्लीज। जी, तो हम लोगों ने एक यहाँ पे कोशिश की कि बहुत ही सिंपल सरल लैंग्वेज में बुजुर्गों से जुड़े हुए जो अधिकार कानून है उनको लेकर के आईसी मटेरियल उन तक पहुंचे, और कोशिश ये भी की कि अगर जहाँ पर ये लगे कि कोई लोकल लैंग्वेज का भाषा का प्रयोग करना तो वो करते हुए हम आईसी मटेरियल की हमारी एक्सपर्ट्स की यहाँ टीम बनाई हम लोगों ने, और उसके माध्यम से हमने करीब जैसलमेर की 50 पंचायतों में आईसी मटेरियल तैयार किया। और आईसी मटेरियल तैयार करने से पहले हमारी यहाँ पूरी टीम जो है पर डिस्कस करती है कि कौन सा शब्द, कौन सा फोटो किस तरह का सा लेना जरूरी है ताकि लोगों में पॉपुलर हो। और उसमें अच्छी बात ये रही कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम जब जाते हैं और जहाँ पर इन बैनर्स, इन पोस्टर्स के साथ में, तो बहुत ही एक शब्द में बहुत अच्छे से उनको ये समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं हम। बुजुर्गों से जुड़ी हमने एक 2 मिनट का छोटा सा एक वीडियो भी हमने तैयार किया है, लेकिन वो वीडियो भी फाइनल स्टेज पे नहीं था। इसी को लेकर के हम चाहते थे कि आपको आज वो दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो अभी उसमें कुछ एडिटिंग का काम चल रहा है, तो जल्दी ही हम आपके सामने वो लेकर के उपस्थित होंगे। इसके साथ हम लोगों ने जो हमारे बुजुर्गों के एक्सपीरियंस में एक ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने कुछ स्टोरी टेलिंग क्लब बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग और युवा एक साथ बैठ करके चर्चा कर सकें और खास करके ये देख सके कि जो इंडिजिनस नॉलेज हमारा है वो भी कैसे कंजर्व हो सकता है, और जो नई योजनाएं और नए अधिकार जो बुजुर्गों से संबंधित हैं उन अधिकारों पर युवा क्या सोचते हैं और युवा कैसे बुजुर्गों के साथ उनको शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा स्टोरी टेलिंग क्लब जिसकी हर महीने मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के में आपस में इनकी चर्चा होती है कि कौन सी योजना, कौन से अधिकारों का लाभ ले सकते हैं। खास करके वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है वो सबसे ज़्यादा बुजुर्गों में या इस पूरे समूह के अंदर सबसे पॉपुलर है, और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो किन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उस पेंशन को नहीं ले पाते। किसी में नाम के उनके अंदर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होता है या कभी ऑनलाइन वो अप्लाई उसको नहीं कर पाते हैं। तो इसको लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के वो युवाओं के साथ एक स्टोरी टेलिंग क्लब हम लोगों ने बनाया है। इसी के अलावा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बुजुर्गों के कंस्ट्रक्टिव किस तरह से वो भूमिका निभा सकते हैं डेवलपमेंट के अंदर, तो उनके इस तरह के समूह बनाए जाएं जो जिस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकते हैं, चाहे वो खेती किसानी हो या कि शिक्षा हो या कि स्वास्थ्य हो, जहाँ जिस क्षेत्र में उनको लगता है कि वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं वहाँ वो कैसे निभा सकते हैं, इसको इंश्योर करने के लिए उनके साथ में हम लोग मीटिंग करते हैं। एक हमारा प्रयास ये भी है, जो मेरी आपसे भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से भी कोशिश रहेगी, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से बुजुर्ग, हालांकि अभी बात बुजुर्गों की करनी है, लेकिन बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे तीनों वल्नरेबल हैं। तो इसको हम कैसे हमारी पॉलिसीज में
ये चूंकि ये मुद्दा बुजुर्गों से बातचीत करते हैं उसमें निकल के आता है कि क्लाइमेट चेंज का असर खेती किसानी पर भी पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो यूथ है वो वल्नरेबल, वो माइग्रेट करते हैं अपने गांव से, बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। ठीक सर, वो ठीक कैसे आलोक मुद्दा सर, इसमें शामिल हो सकता है? जी जी, थैंक यू सो मच सर। आपने जो धरातल से जुड़े हुए अनुभवों को साझा किया हमारे बीच में। एनसीईआरटी देश में बच्चों के लिए, युवाओं की गुणात्मक शिक्षा के लिए सतत कार्यरत है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति विशेष रूप से युवाओं की संवेदनशीलता को कैसे और बढ़ाया जाए, इस दिशा में संभावनाओं पर एनसीईआरटी की क्या सोच है, ये जानने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपनी अगली वक्ता मैडम उषा शर्मा जी को, जो एनसीईआरटी की सेल फॉर नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी की इंचार्ज हैं। मैं मैडम उषा शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन हमसे साझा करें। मैडम। बहुत बहुत आभार आपका, और विशेष रूप से आभार आपके आमंत्रण का। तो ये एक बहुत अच्छा विषय है कि जहां हम सीनियर सिटीजन के प्रति अपनी संवेदनाओं को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें ये जिंदगी के जिस पड़ाव पर है उस पड़ाव पर उन्हें कैसे हम सुख दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं। एक चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है तो अंडे के रूप में देती है, फिर उसमें से एक पंछी निकलता है और फिर पंछी एक दिन घोंसला छोड़कर उड़ जाता है। उस चिड़िया की तकलीफ ठीक वैसे ही है जैसे माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं और वो जब बड़े होते हैं तो वो पंछी घोंसले से उड़ जाते हैं। ये पंछी विदेश चले जाते हैं, 7 समुंदर पार चले जाते हैं, फिर वापस लौट के नहीं आते हैं। और इनमें से बहुत सारे पंछी ऐसे हैं जो अपने माता पिता का इंतजाम वृद्धाश्रम में करते हैं। तो जब किसी भी वृद्धाश्रम का इनॉग्रेशन होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि हम इसे सुखद माने या दुखद माने कि वृद्धाश्रम जैसी परंपरा हमारे समाज का हिस्सा बनती चली जा रही है। एनसीईआरटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में जहां अडल्ट एजुकेशन के लिए लगातार काम कर रही है, और अब उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट एनसीईआरटी में स्टैब्लिश हुआ है, नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी, जहां हम अडल्ट लर्नर्स की बात कर रहे हैं। ये अडल्ट लर्नर्स 45, 46 या 50 के एज के नहीं है, ये अडल्ट लर्नर्स हैं 50 इयर्स ऑनवर्ड्स। यानी कि ये एक ऐसा बड़ा बृहद पटल है जहां हम टीनेजर्स को भी एड्रेस कर रहे हैं, जहां हम एडोलेसेंट को भी एड्रेस कर रहे हैं, जहां अडल्ट्स को भी एड्रेस कर रहे हैं, जहां हम सीनियर सिटीजन या बुजुर्गों को भी एड्रेस कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका है कि जब हम इस एजुकेशन के माध्यम से समाज के हर उस व्यक्ति को सेंसिटाइज कर सके कि उसे जीना कैसे है। हम अक्सर न्यू लिटरेट्स की बात या लिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं और अडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसे आदमी की तस्वीर आती है, यही तस्वीर आपके जहन में भी आती होगी। एक ऐसे आदमी की तस्वीर जहन में आती है जो जिंदगी से बेजार है, जिसे लगता है कि जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है। तो आधे बाल काले, आधे बाल पके, कच्चे पक्के बाल, और चेहरे पर ऐसी निराशा और मायूसी हमें नजर आती है। ये हम तसव्वुर करते हैं जब कभी भी हम प्रौढ़ शिक्षा का नाम सुनते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो 15 साल और उससे ऊपर के भी बच्चे हैं, या जो किशोर हैं, युवा हैं, तरुण हैं, वो भी अभी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। तो इस पूरी पॉलिसी और एनसीईआरटी की दो तरफा कोशिश है। एक कोशिश ये है कि ये जो सारे जो साक्षर नहीं है, ये जिंदगी का अपना बहुत बेहतरीन तजुर्बा रखते हैं, लेकिन साक्षर नहीं है, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, लेकिन एजुकेटेड हैं, हमसे ज्यादा एजुकेटेड हैं क्योंकि इन्हें जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है। तो उन लोगों को लिटरेट बनाया जाए। और इस ही सिक्के का दूसरा पहलू है, वो है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम एक समाज को न्याय संगत समाज, एक तर्कशील समाज बनाना चाहते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि हम अपने आसपास की दुनिया से परिचित हो सके और आसपास जो लोग हैं उनकी संवेदनाओं को समझ सके। मेरी बातचीत में जो अगला पड़ाव है वो है कि हम जब बुजुर्गों की बात करते हैं तो हमारी कोशिश है कि हम जो सीनियर सिटीजन है उनके प्रति एक सेंसिटिव रवैया हमें अपनाने की जरूरत है। ये वो व्यक्ति हैं जो उम्र के उस पड़ाव पर आकर बेहद संवेदनशील हो जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि वो शरीर से लाचार हैं, वो अब कुछ कर नहीं सकते, वो पैसों से भी लाचार हैं क्योंकि उन्होंने अपनी धन संपत्ति, अपनी जो जमीन जायदाद है वो अपने बच्चों के नाम कर दी है। तो ये इनकी तकलीफ और बढ़ जाती है। वो पंछी सुबह उठ जाते हैं, शाम को आते हैं, कई पंछी तो शाम को भी नहीं आते हैं, कई पंछी तो सालों में एक बार आते हैं। तो ये दिन भर उनका इंतजार करते हैं कि कब उनके बच्चे उनके पास आएंगे। तो ये यूथ को और जो परिवार के लोग हैं उन्हें सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि बुजुर्ग जितने ज्यादा
उम्र दराज होते चले जाते हैं, उनकी संवेदनशीलता, उनकी सेंसिटिविटी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। हम तब सेंसिटिव नहीं होते हैं, या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हम तब नहीं हो पाते हैं जब हम सक्षम होते हैं, फिजिकली भी सक्षम होते हैं, मेंटली भी सक्षम होते हैं, और धन की दृष्टि से भी हम सक्षम होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम हर उस चीज में हमारी कटौती होती चली जाती है, और हम और बेहद संवेदनशील होते चले जाते हैं। तो हमें ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की जरूरत है कि ये जो बुजुर्ग हैं, ये हमारे समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हमने इनके अनुभव का फायदा नहीं उठाया तो घाटे में हम हैं। तो जरूरत इस बात की है कि उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। ये क्वालिटी टाइम आमने सामने बैठकर बातचीत करने से तय होता है, न कि जब हम बातचीत करें तो हमारी बातचीत में सिर्फ पैसे, धन संपत्ति, जायदाद, पेंशन की बात हो। इनके दर्द, दुख, तकलीफ को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उनकी खामोशी, उनके मौन को भी बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ये बोलते क्यों नहीं है। तो मन में एक बात आती है कि अब सठिया गए हैं इसलिए बोलते नहीं है। तो हमें लगता है कि जो एक पीढ़ियों का अंतर है, उस पीढ़ी के अंतर को खत्म करना बहुत जरूरी है। जरूरत इस बात की है कि जो हमारे लर्नर्स हैं, या जो हमारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं, और यहाँ हम सिर्फ 15 इयर्स ऑनवर्ड्स बात नहीं कर रहे, बल्कि माता पिता, तमाम उम्र के जो लोग हैं, उनको इस लिहाज से सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि जब व्यक्ति उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचता है तो उसके पास अनुभव संसार बहुत ज्यादा है। तो उनके अनुभवों को की रिस्पेक्ट करना सीखें, उसका सम्मान करना सीखें, उनके नजरिए, उनके पर्सपेक्टिव, उनके दृष्टिकोण को भी रिस्पेक्ट करना सीखें। हमें लगता है कि हम अक्सर बहुत सारे जो भाषा है हमारी, बहुत खराब भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, कि बहुत कंजूस हैं, ये पैसा खर्च नहीं करते, इनकी अंटी से कोई पैसा निकाल के दिखाए तो जाने। हमें लगता है कि जो बुजुर्ग हैं ये बहुत कंजूस हो गए हैं, लेकिन ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में गरीबी देखी है। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक की यात्रा तय की है। ये वो बुजुर्ग हैं जिनकी अंटी में मुश्किल से 1 या 2 रुपए रहते होंगे, लेकिन उन्होंने पूरा महल और पूरा परिवार खड़ा किया, पूरा परिवार चलाया है। आज के युवा, जो आज के अडल्ट हैं, वो शायद अपने 2 बच्चों को भी ना पाल पाए, लेकिन उस जमाने के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने 5-6 परिवार के लोगों को अच्छी तरह से पाला, और कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, वो हर पल ये बुजुर्गों के एहसास दिलाती है कि हम आपको ढो रहे हैं, हमने आपको अपने परिवार में आश्रय दिया है। तो पीढ़ियों का अंतर दरअसल सोच, समझ, विचार, दृष्टिकोण का अंतर तो एक तरफा है। ये अंतर इस लिहाज से है कि हम सेंसिटिव नहीं हैं। हम अपने लिए तो बहुत सेंसिटिव हैं। हमें किसी ने कुछ कहा, किसी ने तिरछी नजर से देखा, किसी ने बहुत आड़ी नजर से देखा, तो भी हम हर्ट फील करते हैं। लेकिन हम सिर्फ अपने मामले में सेंसिटिव हैं। अपने बुजुर्गों, अपने परिवार के सदस्यों, जो समाज के सदस्य हैं, उनके लिए हम बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हैं। ऐसे कितने युवा हमने अपने आसपास देखे होंगे, जब वो किसी बुजुर्ग, वो जब सड़क पार करते हैं या कहीं रास्ते पर भी चलते हैं, कोई बुजुर्ग है जो लाठी टेक कर चल रहा है, कोई मैंने युवा ऐसा नहीं देखा जो उस बुजुर्ग के चले जाने का इंतजार करे, या उस बुजुर्ग को प्रणाम करके उससे आगे निकल जाने का कहे कि माफ कीजिए कि मुझे आगे निकलना होगा। हम उस व्यक्ति की उपस्थिति को एक सिरे से नकार देते हैं। उस वक्त ये तकलीफ होती है कि कभी वो जमाना था कि जब हम भी पैदल दौड़ते थे, हम भी तेज गति से सड़क पार करते थे, आज हमारे लिए कोई नहीं रुका। जबकि माता पिता जब होते हैं तब वो अपने बच्चों के लिए रुकते हैं, उनका हाथ पकड़ कर चलते हैं, वो उन्हें छोड़ नहीं देते। बड़े जब हो जाते हैं बच्चे, वे अपने माता पिता का हाथ छोड़ देते हैं। पारिवारिक कलह हो या कोई भी कारण हो, ये कभी भी उन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। तो एनसीईआरटी की ये हमेशा से पुरजोर कोशिश रही है कि ये जो पीढ़ियों का अंतर है, इस अंतर को कम किया जाए। ये जो बुजुर्ग वर्ग है, ये जो सीनियर सिटीजन है, इनके प्रति हम जितना सेंसिटिविटी जनरेट कर सकते उतना सेंसिटिव लोगों को बनाया जाए। और ये तब होता है जब हमारे भीतर एम्पैथी आती है, तदनुभूति। वो सामने वाला बुजुर्ग जैसा महसूस करता है, हम वैसा महसूस कर सके, उसके जूते में अपना पांव डाल के देख सके, तब हमें दर्द का एहसास होता है। और ये भी बात जरूरी करना है, जो युवा हैं, जो अडल्ट हैं, जो अब बुजुर्ग होने के रास्ते पर अग्रसर हो रहे हैं, या जो बहुत छोटे बच्चे हैं, कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना है। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति का सम्मान का मतलब है उसकी बात का सम्मान करना। हमें लगता है कि पीढ़ियों का अंतर है, सोच का अंतर है, अब वो चीजें वैसी नहीं है जैसे आपके जमाने में हुआ करती थी। तो इस बात के लिए कौन मना करता है?
तो ये बात हम बैठकर आपस में तय कर सकते हैं, बुजुर्गों से सलाह ले सकते हैं कि आप जब अपने जमाने में ऐसा करते थे तो क्यों करते थे, और बड़े जो छोटे हैं बच्चे हैं वो समझा सकते हैं कि आज हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देखिए कुछ मूल्य जो होते हैं वो शाश्वत मूल्य होते हैं, वो कोई भी जमाना आए, वो कोई भी युग आए, वो कभी बदलते नहीं है, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बात है मानवीयता, मानवीय रिश्तों की गरिमा को बनाए रखना। ये कोई भी पीढ़ी आए, ये हर पीढ़ी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो बच्चे हैं, अडल्ट हैं, एडोलेसेंट हैं या फिर बुजुर्ग हैं। हमें सिर्फ नजरिए को देखने की जरूरत है, उसके उनके नजरिए को समझने की जरूरत है। और अगर हम अपना नजरिया भी समझाने के लिहाज से समझाएंगे, थोपने के लिहाज से नहीं, समझाने के लिहाज से समझाएंगे, तो ये बुजुर्ग भी उस बात को समझ जाते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अब मोबाइल की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। उसके दो कारण हैं, एक वो नई टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं, और दो अब उनके पास कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो समय बिता सकें। और ऐसे बुजुर्गों की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है जो अकेले रह जाते हैं। या तो पति की मृत्यु हो जाती है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, वो दिन भर अपने बच्चों का इंतजार करते हैं या अकेले ही पड़े रहते हैं, न तो उनको ढंग से खाते हैं न पीते, उनका किसी भी चीज में मन नहीं लगता, तो वो मोबाइल के सहारे अब अपना समय गुजारते हैं। वो प्रतीक्षा करते हैं कि कब उनके बच्चे आएंगे, कब उनसे वो 2 बात करेंगे, वो 4 बात करेंगे, तो वो इस बात को तरसते हैं। तो ये जो उनके मन की पीड़ा है, ये समझना बहुत जरूरी है। उनके पास जितना अनुभव है उसे समझना जरूरी है, और सभी बुजुर्गों को ये बार बार एहसास न दिलाया जाए कि अब वो बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि व्यक्ति मन से बूढ़ा होता है, शरीर से बूढ़ा नहीं होता। तो जिसके पास उत्साह नहीं है, जिसके पास उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, वो बुजुर्ग है। लेकिन जिसके पास 80 साल 90 साल में भी जिंदगी को जीने का उत्साह है, खुशी है, उमंग है, वो व्यक्ति हृदय से युवा है। तो हम इन्हें ये एहसास न दिलाएं कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप इस रंग के कपड़े मत पहना कीजिए, अब आपकी उम्र हो गई है, आप ऐसे जूते मत पहना कीजिए। तो जैसे बुजुर्गों का मन करता है रहने के लिए, उन्हें रहने दिया जाए, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों की हर खुशी का ध्यान रखते थे। तो आज हम अपने उस दायित्व को भूलते चले जा रहे हैं। और हमारी ये भी कोशिश है कि हम बहुत ज्यादा जो अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं अपने एनसीईआरटी में, उसकी भी यही कोशिश है कि जो एडोलेसेंट एज के लोग हैं, टीनेजर्स के हैं, अडल्टहुड के लोग हैं, उनको हम इस दिशा में सेंसिटाइज करें। बुजुर्गों को या जो उनके पास काबिलियत है उसका भरपूर इस्तेमाल करें, चाहे वो नॉन लिटरेट को पढ़ाने का मामला हो, या वो स्कूल में अपने अनुभव, अपने जो एक्सपर्टीज है वो भी उसे दे सकते हैं। तो उनके लिए उनके हिसाब से कुछ ऐसे काम खोजे जाएं जहां वो लगातार लगे रहें। जब तक वो काम में लगे रहेंगे तब तक उन्हें अपनी उम्र दराजी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि अब उनका जो उनकी एनर्जी है वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज हो रही है। तो दिन भर खाली बैठे रहना, मोबाइल से लगे रहना और दिमाग में तरह तरह के ख्याल आना, बुजुर्गों को डिप्रेशन में जाने में समय नहीं लगता है। और डिप्रेशन में गए बुजुर्ग बहुत जल्दी से वापस नहीं आते हैं, क्योंकि आप किसी के मन को नहीं समझा सकते, क्योंकि आपने कभी किसी के मन को समझा ही नहीं। तो किसी के मन को समझाना कि आप ऐसा कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा, ये सिर्फ कहने भर की बात है, ऐसा होता नहीं है। हम अगर डिप्रेशन में कभी चले जाएं और कोई कहे कि नहीं देखो दुनिया कितनी हसीन है, कितनी रंगीन है, आप ये काम कर सकते हैं, ये हम सिर्फ सुनते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन ये असल में व्यक्ति के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो खुद को डिप्रेशन से कैसे बाहर निकालता है, खुद का उस पर वापस कैसे विश्वास हासिल होता है। जब तक हम युवा होते हैं, जब तक हम सक्षम होते हैं, हमारा खुद पर बहुत विश्वास होता है कि हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते चले जाते हैं और दुनिया जब हमें हमारे बुजुर्ग होने का, यानी कि वयोवृद्ध होने का एहसास दिलाती है, तो हम अपना हौसला, अपना उत्साह, अपनी उमंग को छोड़ते चले जाते हैं। एनसीईआरटी ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स और बुकलेट्स निकालने की भी राह पर अग्रसर है, जहां हम सभी समुदाय के लोगों को इन लोगों के प्रति सेंसिटाइज कर सके। इन लोगों के लिए काम करना हमारा दायित्व है, तो इनको लायबिलिटी ना समझाया जाए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा दायित्व, हमारा फर्ज है। हम जब बच्चे थे तो हमारे माता पिता ने हमें संभाला, अब हम बड़े हो गए तो हमारी जिम्मेदारी कि हम अपने माता पिता को संभालें, और उसी तरह से संभालें जैसे उन्होंने हमें संभाला था। अब आज की जो पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो रही है। सोशल मीडिया या जो डिजिटल दुनिया है उसने उसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट किया है, उसे अपने फर्ज, उसे अपने दायित्व वो भूलते चली जा रही है कि हमें कब किसके साथ किस लिहाज से बात करनी है। हमें लगता है कि बुजुर्ग हमारी मौज मस्ती में आड़े आ रहे हैं,
तो इन्हें वृद्धाश्रम भेजना जरूरी है। रोज पत्नी से चिक होती है, बच्चों से चिक होती है, तो इससे अच्छा है कि बुजुर्ग अपना अलग रहे। सोचिए उस बुजुर्ग की तकलीफ कितनी है कि कभी माता पिता ने अपने बच्चों के लिए बच्चा घर नहीं खोला, लेकिन बच्चों ने अपने माता पिता के लिए वृद्धाश्रम खोल दिया। ये बहुत हैरानी की और बहुत चिंता की बात है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। हम विकास किसको कहें? बिल्डिंग बनना या बहुत ज्यादा पैसे कमाना या सैलरी बढ़ जाना या हाईटेक हो जाना, ये विकास का पैमाना है? या मानवीय रिश्तों में हम ऊंचे होते चले जा रहे हैं, ये विकास का पैमाना है? हमने कभी विकास के पैमाने में इन सब चीजों को कभी तरजीह दी नहीं है। तो इसलिए हमें अपना विकास का पैमाना भी बदलने की जरूरत है। हम ऐसे बहुत सारे वेबिनार, हमारे ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, हमारे ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं जहां बुजुर्ग भी अपनी बात को शेयर कर सके, जहां वो ये तय कर सके कि अगर हमें नॉन लिटरेट को लिटरेट बनाना है तो उसमें वो क्या कर सकते हैं और हमें किस तरह से लोगों को डेवलप करने की जरूरत है। सही गलत का फर्क तय करना, सही के साथ खड़ा होना, गलत के विरोध में खड़ा होना, ये काबिलियत, ये हिम्मत, ये साहस हमें हमारे बुजुर्ग भी दे सकते हैं। हम जो करते हैं उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, ये भी बुजुर्गों से समझने की जरूरत है। तो उनसे समझने के लिए उनके पास बैठना जरूरी है और उनके पास बैठने के लिए हमें समय निकालना जरूरी है और उसे भी कोई फॉर्मेलिटी न समझा जाए। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी चाह, ये हमारी इच्छा है कि हम अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करें और उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी के लिए अनुभवों को हासिल करें। तो अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लगता है कि वो नॉन लिटरेट के लिए है, लेकिन वो हम सब के लिए है। जब हम लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की बात करते हैं, हम सब के लिए ये प्रोग्राम है, क्योंकि हम पढ़ना लिखना तो जानते हैं, पराठेदार अंग्रेजी भी बोल लेंगे, लेकिन हो सकता है कि कई मामलों में हमें उसकी जानकारी ना हो। हम फिनेंशियली इलिटरेट हो, हम डिजिटली इलिटरेट हो, हम लीगली इलिटरेट हो, तो हमारी इलिटरेसी का दायरा बहुत बड़ा है, जबकि नॉन लिटरेट लोगों की इलिटरेसी का दायरा बहुत सीमित है। वो सिर्फ पढ़ना लिखना तो नहीं जानते, लेकिन उन्हें जिंदगी में बहुत बड़ा तजुर्बा है। और मैं अपनी अंतिम बात इसी बात से समाप्त करती हूँ कि प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब, ये मेरे कहानी दिल के बहुत करीब है। और इस कहानी में एक वाक्य आता है कि समझ किताब पढ़ने से नहीं आती है। और बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को समझाने के लिहाज से भी कहते हैं कि आप और तुम और हम कितना भी पढ़ लिख जाएं तो भी हम अपने माता पिता की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमारे हेडमास्टर साहब की जो बूढ़ी दादी है, बूढ़ी माँ है, वो घर का खर्च चलाती है क्योंकि उन्हें घर चलाने का तजुर्बा है। तो हमें इन कहानियों से, इन साहित्य से अपने लिए बहुत कुछ सबक लेने की जरूरत है। तो आपके आमंत्रण के लिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, साधुवाद कि आपने ऐसे लोगों के लिए इतना वेबिनार रखा जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है, उनके बारे में आपने सोचा। और वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या के बारे में भी सोचने की जरूरत है कि हम किस राह पर जा रहे हैं। कम से कम मैं किसी वृद्धाश्रम के इनॉग्रेशन में तो कभी नहीं जाऊं। आभार, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच मैम। आपने अपने शेयरिंग में बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया। चिड़िया का जो आपने एग्जांपल दिया, और एक बात आपने बोली कि पढ़ना लिखना नहीं जानते लेकिन एजुकेटेड हैं, तो सोचने वाली बात है। और हमारा जो रिस्पांस है, मेरे ख्याल से बहुत कुछ है हम सबको प्रेरणा देने के लिए इस दिशा में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्याय विभाग की तरफ से। आपसे प्रेरित होकर मैं 2 लाइन किसी फेमस शायर की शेयर करना चाहता हूँ। कट चुकी हैं उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, आज उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आज उनको क्या, उनके साथ में हमारा रिस्पांस आज कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं अब अपने विभाग के, न्याय विभाग के A to Z डिवीज़न के जॉइंट सेक्रेटरी श्री नीरज कुमार ग्यागी जी को उनके विशेष उद्बोधन के लिए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए निवेदन करता हूं। सर के नियमित मार्गदर्शन में A to Z डिवीज़न अपने कार्यक्रमों को संचालित करता है। इस विधिक जागरूकता वेबिनार श्रृंखला की योजना, इसकी शुरुआत और इसे जारी रखने का श्रेय सर को ही जाता है। सर। श्री राजीव सहाय एंडला, रिटायर्ड जज दिल्ली हाई कोर्ट, श्री मनोज सी, डीसीपी दिल्ली पुलिस, श्री भरत लाल मीना, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डॉक्टर उषा शर्मा एनसीईआरटी, श्री मिसेस अनुपमा दत्ता हेल्पेज इंडिया से, ब्यास जी सीडे को डेकॉन से। सबसे पहले मैं अपनी टीम को शाबाशी देना चाहता हूं कि उन्होंने जो पैनल पे जिनको बुलाया है, उन्होंने इस बहुत ही क्लिष्ट टॉपिक के ऊपर में ऑलमोस्ट सारे आयाम को
एक बहुत बखूबी तरीके से सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से अपनी बात रखी। एक कोट मैं भी देना चाहता हूँ। एक इंग्लिश राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड, उनकी एक बड़ी फेमस लाइन है कि द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज इज दैट इट इज द बॉडी विच ग्रोज ओल्ड, माइंड रिमेन्स यंग। देखिए, ये जिसको हम लोग समस्या बोल रहे हैं ये होनी थी। 50s में थॉमस एंड रूबिनस्टीन की एक थ्योरी आई थी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसमें इस बात की परिकल्पना की गई थी कि संसार के सारे समाज एक अर्ली स्टेज से एक प्रौढ़ स्टेज तक जाएंगे, जिसमें कि उनका एज और सेक्स स्ट्रक्चर जो है पॉपुलेशन का वो पिरामिड से होते हुए रेक्टेंगुलर होते हुए लास्ट में इन्वर्टेड पिरामिड के रूप में तब्दील हो जाएगा। और इस पिरामिड को समझने के लिए बड़ा सिंपल है, जहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ नीचे का बेस बड़ा है। धीरे धीरे जब बर्थ रेट कंट्रोल होता है तो उनकी संख्या घटती है और उसके बाद बड़ों की संख्या बढ़ती चली जाती है। ये हम और आप, हम आज उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, हमने अपने भारत के समाज में ये होते हुए देखा है कि कैसे कर कर के पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है हम लोग के समाज का। और आज की तारीख में जो पॉपुलेशन रेट है वो तो कम हो गया है। मीना जी ने अपने प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही सुंदर डायग्राम दिखाया था, एक लाइन डायग्राम दिखाया था, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो तो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन जो ओल्ड एज का जो पॉपुलेशन है वो उसमें एक वर्टिकल जंप आ रहा है। ये अनुपमा जी ने कहा कि जब आपके पूरे पॉपुलेशन का 20% लोग अगर वृद्ध होंगे और उनकी ये समस्या होगी कि उनको देखेगा कौन, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम और आप अभी उम्र के जिस पड़ाव पे हैं बहुत कम समय में उस श्रेणी में आने वाले हैं। अपने लिए नहीं कह रहा हूं मैं, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा इसमें हो जाएगा। और इसके कई फैक्टर हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से बात की और इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। और इसमें इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशल कल्चरल फैक्टर है, और जो हमने एक विकास की कीमत चुकाई है और जो चुका रहे हैं। जब एक समाज आगे बढ़ता है वित्तीय हिसाब से, तो उस सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो उसका परिवार टूटता है। जो माँ बाप हम लोग के खुद के लिए हर भगवान के सामने प्रार्थना करते थे कि मेरा बेटा का इस एग्जाम में हो जाए और ये पद हो जाए, वो होने के बाद सबसे पहले उनका बेटा वो घर छोड़ करके उनको छोड़ कर चला जाता है। और उसके बाद जैसा उषा जी ने कहा कि कुछ एक पंछी जो हैं वो महीने भर में आते हैं और कुछ साल भर में आते हैं, वो हमारे साथ हो रहा है। और हमारे बच्चे तो अब हमसे भी आगे जा रहे हैं, वो तो अब विदेशों में बसना चाहते हैं। तो ये तो होगा और ये होता रहेगा। और ये जो मैं भी बोल रहा हूँ ये सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। भारत के अगर पूरी जनसंख्या को देखेंगे तो जो समस्या वृद्धा की है वो अर्बन का पॉपुलेशन जो है उसकी अलग है, और जो गाँव में है उनकी समस्या बिल्कुल अलग है। मनोज ने जो दिल्ली पुलिस की योजनाओं के बारे में बताया, वो योजना आप गांव में जाकर के नहीं चला सकते। वो दिल्ली जैसे मेट्रो में लागू होगी, कलकत्ता जैसे मेट्रो में लागू होगी, बॉम्बे जैसी मेट्रो में लागू होगी। गांव में जैसा मीना जी ने बताया कि उनको कैसे कर करके एक किसी कार्य में इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो अपनी आजीविका चला सकें और किसी के ऊपर में डिपेंडेंट ना रहें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और इसमें किसी एक चीज़ का कोई एक योजना बना करके या किसी एक पक्ष को देख करके उसको नहीं उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। इसका एक लॉन्ग टर्म समझ और इसको लॉन्ग टर्म इसके ऊपर कार्य योजना बननी होगी। और ये एक वेबिनार के माध्यम से मुझे आज ये एहसास हुआ है कि ये समस्या जितनी दिखती है और हम लोग बस इसकी आदत बना लेते हैं। जितनी बातें उषा जी ने कहा शायद हम सबके घर में आज की डेट में घट भी रही हैं, लेकिन हम लोग इनसेंसिटिव होते चले जाते हैं धीरे धीरे।
तो क्या किया जाए कि इसकी सेंसिटिविटी धीरे धीरे बढ़े। और सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी योजनाएं बना के लेकर के आई हैं, लेकिन वो किसको पता है आखिर, और अगर पता भी है तो उसका कैसे करके उपयोग करें। आप एक्ट बनाइएगा, एक्ट बना करके एक हाई कोर्ट जो है उसमें कुछ एक संशोधन लाएगा। आप लिटिगेशन करना पर्पस नहीं है, पर्पस ये है कि कैसे कर करके एक वृद्ध की समस्या का निवारण किया जा सके। मेरी समझ से जो भी योजनाएं हैं उसको बहुत ज़रूरी है कि उसको हर नीडी के साथ पहुंचाएं। उसमें एक जो लिटरेसी का और एक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस चला रहा है, हम लोग अपनी तरफ से प्रयोग करेंगे। टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा प्रयोग और टेक्नोलॉजी का उपयोग इस कार्य में बहुत महती तरीके से करना होगा हमको। सबसे पहले ये इसको समस्या नहीं, इसको हम लोग जीने की कला बनाएं, तभी इसका समाधान निकल पाएगा। और ये समस्या कोई बाहर की नहीं है, ये हमारी अपनी है और हमारे अपनों का है। जब तक हम लोग इस भावना से काम नहीं करेंगे, इसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा। उषा जी की बातें सुन करके और प्रेमचंद की कहानियों का जिक्र सुन करके बड़ा अच्छा लगा। आजकल का पूरा जनरेशन प्रेमचंद की कहानियों से और उसके मर्म से पूरी तरीके से मरहूम है, और इसके लिए हम ही दोषी हैं। हम ही उनको टैबलेट ला करके दिए हैं, हम ही उनको फ़ोन दिए हुए हैं, और हमने ही उनके लिए अमेजन और प्राइम की व्यवस्था कर रखी है, और हम ही अपने समाज का निर्माण भी कर रहे हैं। तो कभी कभी मजाक में अपने बाकी दोस्तों से कहता हूं कि शायद हम लोग का जनरेशन एक ऐसा है जिसने अपनी माँ बाप से भी गाली खाई और अपने बच्चों से भी खा रहे हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप बहुत सख्त थे और बच्चे अब इतने इंडिपेंडेंट हैं कि उनकी तरफ से भी झुड़की सुनने को मिलती है। तो पता नहीं हम लोग का बुढ़ापा कैसे होगा। बहरहाल ये बात मैंने बहुत लाइटर मोड में कही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हर उस काम के लिए कमिटेड है जिसमें कि एक मार्जिनलाइज सेक्शन, मैं मार्जिनलाइज कहते हुए दुखी महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, जिनको कि एक सरकारी तंत्र की और हम सब की ज़रूरत है। कैसे कर करके उस कनेक्ट को, उस डॉट को कनेक्ट किया जा सके, कैसे तक ज़रूरतमंदों तक हम आवाज़ बन के पहुँच सकें, ये हमारा प्रयास है और ये हमारी पहल है। आप सबका सहयोग और आप सब ने जो अपनी बातें कहीं, उसका मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से, सचिव न्याय विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस टाइप के वेबिनार में और इस टाइप के कार्य में आपका योगदान हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत कम समय में हमें असलियत से वाकिफ़ कराया और हमारा मार्गदर्शन किया कि हम सबको कहाँ पे और ज़्यादा अपनी एनर्जी को लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं दिशा स्कीम कोऑर्डिनेटर शिखा हुंडल जी को आमंत्रित करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। So a very good afternoon to all of everyone, each one present today, जिन्होंने भी आज हमारे वेबिनार में ऑनलाइन जुड़ने का प्रयास किया। ये नेशनल वेबिनार श्रृंखला नंबर 10वीं है। मतलब इस 10वें नंबर कहने के पीछे है कि एक सीरीज और एक सिंसियरिटी से लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस को आगे लेकर जाया जा रहा है। इस संदर्भ में proposing vote of thanks, I would like to first of all thank our joint secretary access to justice श्री नीरज कुमार ग्यागी जी, जिन्होंने हमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ इनोवेटिव होने का एक बहुत मोटिवेशन दिया है। एंड एंटायर एक्सेस टू जस्टिस टीम विच कंप्राइजेज ऑफ ऑल यंग कंसल्टेंट्स, उनको नए सिरे से इस पूरी लीगल लिटरेसी की और लीगल अवेयरनेस की योजना को आगे हम कैसे चलाएं उसका मार्गदर्शन दिया है। I would also like to thank our Deputy Secretary श्री RC आहूजा जी, जिन्होंने हमें इस पूरे वेबिनार को
चलाने में पूरा ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिक एंड मॉरल सपोर्ट दिया है. Of course, to begin with our eminent speakers, I would like to propose thanks to Shri Rajiv Sahai and Lord Retired Judge Delhi High Court, जिन्होंने हमें प्रमुख तौर से प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर और लीगल एड सीनियर सिटीजन्स का कहाँ हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है एज अ एक्सेस टू जस्टिस सेक्शन, उस पर हमें एक सोच पैदा करने का मौका दिया है. I would also like to thank Shri Manoj C, IPS DCP दिल्ली पुलिस, जिन्होंने हमें अपने आसपास कैसे पुलिस इस पूरे कार्य को लेकर समाज में 1-to-1 कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रही है. सबसे अच्छा लगा कि 5 सीनियर सिटीजन्स को विजिट करना बाय बीट ऑफिसर्स. आई डिडंट नो दिस हैपनिंग, but this was really touching to hear that. I would also like to thank Shri Bharat Lal Meena ji, Director Senior Citizens. Sir, आपने जिस तरह MSJE के विभिन्न कार्यों को और उनकी स्कीम और पॉलिसी को हमें बताया है. I have just been interacting with our JS sir. हम इस पूरे जो आज के कार्यक्रम है उसमें जितना इंफॉर्मेशन और एजुकेशन मटेरियल जो हम बना सकते हैं उसको कैसे फॉरवर्ड लेके जाएं, और ये इस वेबिनार को वन टाइम स्टॉप ना समझ के इसको कैसे फॉरवर्ड लेके जाएं, उस पर हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे. आई वांट टू थैंक Anupama Datta ji from Helpage India, who has really given us the nuances, the real nuances which is happening in the society and how Helpage India is supporting this entire cause. मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आलोक व्यास जी का कि उन्होंने लीगल लिटरेसी प्रोग्राम में सीको-डिकॉन ने कैसे 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में अपने इस पूरे राइट टू सीनियर सिटीजन्स को कैसे ग्रामीण स्तर पे युवाओं के साथ मिलकर इसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं. और एंड आई वुड रियली वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर उषा शर्मा जी, NCERT. हमारी मुलाकात मैम से अभी थोड़े दिन पहले ही हुई थी और मैम अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम और सेल्फ नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी को जिस तरह आगे लेकर जा रही हैं, हम आने वाले समय में DOJ एंड NCERT मिलकर कई ऐसे लीगल लिटरेसी कार्यक्रम को समाज के समक्ष सिंपल कहानियों के तौर पर लेके उतरेगा. I would also like to thank all my participants, grassroots functionaries जो ये हैं, ये पैनल लॉयर्स हैं, ये विलेज लेवल एंटरप्रेनर्स हैं, ये हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, हमारे साथ जुड़े डिफरेंट संस्थाएं जो इस पूरे एक्सेस टू जस्टिस स्कीम पर काम कर रहे हैं वो लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं लॉ स्कूल्स के जुड़े हैं प्रो बोनो के तहत, वो लोग इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हैं. इस पूरे टेक्निकल सेशन को सक्सेसफुल बनाने में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी कॉमन सर्विस सेंटर की टीम एंड NIC की टीम, जिन्होंने हर बार हमें टेक्निकल ग्लिचेस को हटाकर दिस बैरियर को हटाकर हर किसी के साथ जुड़ने का मौका दिया है. एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय एंटायर एक्सेस टू जस्टिस डिवीजन, माय टीम मेंबर्स, माय कोलीग्स, माय फेलो कोलीग्स who have been a great motivation and a great support to take every effort and make every effort into a reality. So thank you so much, and we will come back soon next month with another webinar on any other social legal cause. Thank you so much. Thank you. We can all log out now. Thank you.